and become full professor in 2000. He was appointed head department of zoology twice in 2003 and again in 2011. Besides, Sir also hold the charge of University Coordinator, National Service Corps, Director, University Library, Chairman, University Sports Board. He also served as Dean, University College of Science, and Chairman, Faculty of Science, Mohanlal Sukhadia University, Udaipur. Sir served as VC member, Academic Council, and Board of Management. Dr. Bhatnagar, sir, also served as acting Vice Chancellor of ML Sukhadia University. Sir was a governor nominee in universities of Gujarat and in Tamil Nadu. Sir is a visiting professor at Kansi University, PR, China. Professor Bhatnagar is a fellow of World Congress of Cell Molecular Biology, France, fellow and senior vice president of Indian Academy of Neurosciences, fellow of Zoological Society of London, fellow of National Environmental Science Academy, India, and fellow and president of Society and Science and Environment. He was awarded Biotechnology Associateship in 1989, Distinguished Teacher Award of Professor C.V. Kapoor Foundation, New Delhi, Scroll of Honor of Society of Reproductive Biology and Endocrinology, Bharat Jyoti Award, Professor D.M. Carr Prize, Eminent Teacher and Change Maker Award from Rotary International, Lifetime Achievement Award from Akhil Bharatiya Kayas Mahasabha, Society of Neuroscience, Eminent Teacher Award at International Conference in Biotechnology. Sir delivered more than 300 invited lectures and chaired respective sessions. He is in editorial board of at least 30 international journals published from USA, UK, Germany, and China. Dr. Bhatnagar sir has contributed in the area of neuroscience, particularly brain aging and regeneration. He has published more than 190 research papers, 7 books including one international, and about 737 students obtained their PhD degree under him. 60 students did his MPhil and postgraduate training in his lab coming from Pan India. Sir has a tremendous citation index is 2900 and H index is 28. Presently, he is Secretary General of Dr. D.S. Hari Institute of Research and Education and President nominated 2024-26 of Vigyan Samiti organization ruling in working in rural areas of promotion of science. Thank you, sir. Please Thank you, continue. Divya. Thank you, sir. Well, it was you entirely read the introduction, but it's okay. It's Students should so know great, the sir. Thank you, sir. yeah. Welcome, Read sir. anything? Okay, now everyone can listen to me clearly. Yes, sir. Okay, Sir. Yes, sir. so let Sir. us start, and I will put the um, or share my yeah. Can you see the presentation? No, sir. No, sir. No, sir. No. No, sir. Not, No, No, sir. sir. not yet, yes, Visible, sir. sir. Okay, okay. Let me see why it is not coming. I have opened it, still it is not coming. क्या हो गया है पता नहीं. Let me see. I can put it again. Ah, okay. Now it's okay. No, sir. Yes, sir. जी सर Yes, present sir. हो Yes, गई sir. है Okay. Okay. I will put it as a slideshow. Yes, sir. So
Now it's clear. Yes, Everybody clear can say, and visible. है? यस सर, थोड़ा विजिबल सा है, जोर से बोलेंगे तो मेरे जी को सर, visible. जी सर। अब विजिबल है दिख रहा सर। है? ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Okay, so welcome to all the participants. और मेरा जो लेक्चर है, चूंकि 2 घंटे है हमारे पास, जैसा मुझे कहा गया है, तो हालांकि मैं 1.5 घंटे से कम में ही बात करूंगा, बाकी हम डिस्कशन करेंगे और आपके जो क्वेश्चंस हैं या आपकी कोई जो क्वेरीज हैं उनको क्लियर करेंगे बाकी इस टाइम में, ठीक है। और मेरे इसमें 2 हिस्से हैं, और वैलिडिटी और रिसर्च जो टॉपिक मुझे दिया गया है उसको आई हैव टू डिसाइड और आई हैव टू डिस्कस इन 2 phases. एक पार्ट में इसको इसलिए मैंने कि व्हाई वी डू रिसर्च, हम रिसर्च करना क्यों चाहते हैं या क्यों करते हैं, और फिर मैंने लिखा है कि वैलिडिटी से मतलब ये होता है कि आपकी रिसर्च की वैधता कितनी, हिंदी में अगर उसको कहें तो वैधता कितनी है, तो उसको समझाने की कोशिश की है। बेसिकली वैधता क्या होती है, और किसी भी काम को, जिसको चाहे वो रिसर्च हो चाहे कुछ और हो, उसकी वैधता को हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं या कैसे बता सकते हैं। इट इज अ वैलिड वर्क डन बाय योरसेल्फ, ओके। चूंकि आप में से बहुत से अलग अलग डिसिप्लिन से हैं, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ लिखे हैं। जैसे एक जनरल क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल प्रेफर प्रीमियम ब्रांड टॉयलेट पेपर टू जेनरिक टॉयलेट पेपर। प्रीमियम मतलब है कि किसी बड़ी कंपनी द्वारा बनाया गया, और एक जेनरिक है कि किसी भी छोटी मोटी कंपनी से बाहर से आया गया। अब कंपनी का जो एम्प्लॉय है या कंपनी का जो एनालिस्ट है, वो ये जानना चाहता है कि आदमी कौन सी ब्रांड की टॉयलेट पेपर पसंद करेगा खरीदने के लिए, या नैपकिन पसंद करेगा, हम टॉयलेट पेपर वर्ड हटा देते हैं, नैपकिन पसंद करेगा, या बाजार में जो सस्ता मिल रहा है उस नैपकिन को पसंद करेगा। अगर उसको पसंद करता है तो वो क्यों करता है और क्यों उसको खरीदना चाहता है। एक जनरल क्वेश्चन इस तरह का। एक क्वेश्चन ये हो सकता है, हाउ मेनी 21-year-old वोटेड इन द लास्ट इलेक्शन। राजनीतिक पार्टियां शायद ये जानना चाहती होंगी कि जो 21 साल के बच्चे हो रहे हैं जिनको वोटिंग राइट मिलना है, वो उनमें से कितनों ने वोट किया और किस किस पार्टी को किया, शायद वो ये भी जानना चाहते हैं। तो एनालिस्ट वुड लाइक टू know this. So this is another question which is based for research. अगर मैं बॉटनी से संबंधित, दो प्लांट से संबंधित कोई काम कर रहा हूं, तो मेरे दिमाग में एक बात ये हो सकती है कि हाउ मेनी प्लांट्स हैव फ्लेवोनॉइड्स। फ्लेवोनॉइड एक केमिकल होता है प्लांट के अंदर, जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होने वाले टॉक्सिन्स को, ये लोगों के लिए वर्ड है, टॉक्सिन्स को, जिसको कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं, उसको खत्म कर सकता है। तो मेरे जैसा आदमी, हालांकि मैं बायोटेक्नोलॉजी से हूँ, बट मैं ये जानना चाहूंगा कि किसी प्लांट के अंदर कोई नाम ले लें, जैसे तुलसी का ही नाम ले लें, तुलसी के अंदर अगर ये केमिकल प्रेजेंट है, तो क्या वो बॉडी के अंदर डेवलप होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म कर सकता है। ये क्वेश्चन हो सकता है। एक और क्वेश्चन हो सकता है, अभी मैं कहीं एक लेक्चर पढ़ रहा था, एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसमें ये एक्सप्लेन किया था उन्होंने कि 2 प्लांट जो एक दूसरे के पास पड़े हों, वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। दिस इज अ रिसेंट रिसर्च डन बाय अ फ्रेंच साइंटिस्ट। जैसे हम आपस में एक कुर्सी, एक हॉल में बैठे हों या किसी से मिले, तो हम जैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, उसी तरह से प्लांट्स भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। सो दिस इज अनदर क्वेश्चन। एक और हो सकता है बाजार के बेसिस पर ही, विच ब्रांड ऑफ वॉशिंग मशीन विल बी यूजफुल फॉर योर ओन पर्पस। आपका जिस तरह का पर्पस है, जिस तरह के कपड़े आप यूज करते हैं, जिस तरह से आप उसको वॉश करना चाहते हैं, तो कौन सी ब्रांड की जो मशीन है, बहुत से क्वेश्चन है। जैसे ये बहुत महंगी तो नहीं है, रिलायबल कितनी है, कितने साल तक की वारंटी है, कितने साल तक चलेगी, अगर इसको डेली यूज किया जाए तो इसकी वेयर टियर कितनी है। तो देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस लाइक दिस व्हिच आर एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऐसे और से बहुत क्वेश्चन हैं उनके साथ जुड़ा हुआ है। अब ये जो क्वेश्चंस हैं, इसमें कुछ प्योर रिसर्च, जैसे कि मैंने बॉटनी के बारे में बताया, फ्लेवोनॉइड के बारे में, प्लांट आपस में कम्युनिकेट करते हैं उसके बारे में, ये तो एक प्योर रिसर्च है। लेकिन दोस्तों, हाउ मेनी पीपल प्रेफर टू प्रीमियम ब्रांड टॉयलेट पेपर या वॉशिंग मशीन के बारे में अगर कोई बात करना चाहता है, तो वो एक्चुअली एक तरह का एनालिसिस है और एनालिस्ट का काम है, बट वो भी बेसिकली रिसर्च है।
चाहे वो एनालिसिस हो कर रहा हो, बट चूंकि एक रॉ इंफॉर्मेशन वो दे रहा है, इसलिए दिस इज बेसिकली अ रिसर्च। सो इस तरह की जो क्वेश्चंस हम खड़े करते हैं वो बेसिकली किसी रिसर्च का या किसी शोध का बेसिस बनाते हैं। मेरे से पहले जिन लोगों ने लेक्चर दिए होंगे उन्होंने आपको जरूर रिसर्च के बारे में समझाया होगा और उसकी डेफिनेशन के बारे में समझाया होगा। तो आप इस स्लाइड में अगर देखें तो मैंने एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन इसकी लगाई है यहाँ, लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक सर्च सॉरी फॉर सर, न्यू आपकी इंफॉर्मेशन। स्लाइड नहीं नहीं, दिख स्लाइड रही नहीं हो रही। है। पहली नेक्स्ट स्लाइड दिख स्लाइड रही है सर। सर। नहीं नहीं है, नो हमें सर, विजिबल हो रही, कुछ बच्चों को हो रही है सर। ऐसा नहीं क्यों? हो रही सर, स्लाइड मुझे नहीं चेंज नहीं हुई सर आपकी। नहीं हो रही, स्लाइड फर्स्ट ही है सर। स्लाइड चेंज नहीं पता। फर्स्ट हुई, एक स्लाइड ही मिनट, दिख रही है। पहला ही अब नो सर। सर ओनली No, स्लाइड sir. फर्स्ट है, व्हाई वी डू रिसर्च, हाँ हाँ, इसके उसके आगे बाद कोई जो मैंने स्लाइड अभी चेंज नहीं हो क्वेश्चंस रही बोले थे उसकी स्लाइड नहीं दिख रही है। नो नहीं सर, नहीं No, दिख sir. रही। बिल्कुल भी नहीं दिख अच्छा, एक काम करते हैं, No, नो सर, sir, not at all. एक काम करते हैं, अम, आपके वहां पर कोई है, मैं इसको शेयर कर देता हूँ मेल से, तो वो इस पर लगा दे। यहाँ राहुल से सर, हो रही हो राहुल सर, तो वहां से ऑपरेट करनी पड़ेगी इसको। सर एक बार वापस ट्राई कर लीजिए। अब नो सर, मैंने हाँ सेकंड स्लाइड लगाई है, विजिबल सर, विजिबल, सभी को। विजिबल हो रही है सर। यस नहीं विजिबल। सर, विजिबल हो। अच्छा, एक मिनट में थर्ड पे जाता हूँ, फिर देख लेते हैं। अब देखिए, अब हाँ हो रही है यस हो रही है? कंटिन्यूअस, बस ठीक। यस सर। Yes, sir. अब इसको, हाँ ठीक है, तो मैं इसको पूरा नहीं करता हूँ, इस तरह से ही रखा हूँ। तो मैंने एक डेफिनेशन यहाँ नीचे लिखी है, लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक सर्च फॉर अ न्यू इंफॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर सेलेक्टेड टॉपिक। बेसिकली इट इज अ डिस्कवरी ऑफ हिडन फैक्ट्स अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक। तो एक पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी के साथ, एक विधि के साथ अगर हम किसी ऐसे टॉपिक पर, सेलेक्टेड टॉपिक पर बात करें जिसके पर हम टोटली नई इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, इकट्ठी कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली ए रिसर्च, जो कि पहले से नोन नहीं है। या बहुत सिंपल में हम कर सकते हैं, इट इज द डिस्कवरी ऑफ हिडन फैक्ट्स अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक। किसी एक चीज के बारे में, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे अंग्रेजी में हो, चाहे आपके बॉटनी में हो, जूलॉजी में हो, किसी एनिमल के बारे में हो, या मार्केट की रिसर्च के बारे में हो, अगर किसी चीज को हम लें और उसके बारे में जो फैक्ट्स आम पता नहीं है उसको अगर अपन जानने की कोशिश करते हैं और एकदम कोई बिल्कुल नया फैक्ट हम पता लगाते हैं जो आज तक नहीं देखा गया, तो दैट कुड बी अ डिस्कवरी, बट इट शुड बी एक्सेप्टेड by all the researchers who are working in that particular area. Then it will be a discovery. Otherwise, it will be identification or gaining a knowledge about the hidden facts जिनके बारे में हमको पता नहीं। चलिए, रिसर्च का स्कोप क्या है, थोड़ा सा बात तो नहीं पड़ेगी इनसे बारे में, उसके बाद ही हम वैलिडिटी पे आएंगे। रिसर्च की बहुत सी बाउंड्रीज, बहुत से स्कोप है, और इसका जो स्कोप है वो काफी दूर तक जाता है। फॉर एग्जांपल, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। अब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव से मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिव का मतलब तो शायद आप समझते होंगे, लेकिन जैसे मैंने अभी इसमें कहा कि एक प्लांट दूसरे प्लांट कम्युनिकेट, मेरे ख्याल से इससे आपको जल्दी समझ में आएगा। अब एक प्लांट दूसरे प्लांट से कम्युनिकेट करता है, तो आपके दिमाग में बात आनी चाहिए, तो मैं इसको स्टडी कैसे करूं, इसका तरीका क्या होना चाहिए? तो आपको 1, 2, 3 कुछ पॉइंट्स आपको बनाने पड़ेंगे, चाहे आप 2 बनाएं, चाहे आप 4 बनाएं, चाहे आप 6 बनाएं, उसमें कोई नहीं है, ऑब्जेक्टिव में कोई लिमिट नहीं है कि आप उसको कम बनाएं, क्योंकि जितना ज्यादा आप उसकी स्टडी करने की कोशिश करेंगे, कई तरह के लगाएंगे, तो उतने ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स इसके ज्यादा बनेंगे। तो अब ऑब्जेक्टिव्स में बेसिकली जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं
वो ये होगा कि मैं ये कैसे जानने की कोशिश करूं कि ये दोनों प्लांट आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इसको मेजरमेंट का कोई तरीका होना चाहिए। तो अब पहली बात तो दिमाग में आती है, क्या कोई विजुअल तरीका है? मैं कैमरा लगा दूं और कैमरा ये ऑब्जर्व करे और उसको मतलब रिकॉर्डिंग करे कि प्लांट आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या मैं उसको देख सकता हूँ? ये एक चीज मेरे दिमाग में आती है। दूसरी बात ये आती है कि मैं इसको मेजर करूं, तो अब मेजर कैसे करूं? ओके, क्या जैसे वॉइस की रिकॉर्डिंग होती है उस तरह की कोई रिकॉर्डिंग इसमें संभव है? तीसरी बात ऑब्जेक्टिव्स की आती है कि चलो अगर वो ना करूं तो पत्तों के अंदर जो उसके पौधे के पत्ते जो आपस में एक दूसरे के पास आ रहे हैं और जैसा कि हम कह रहे हैं उन के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो क्या वो कम्युनिकेशन इन पत्तों के बीच में आपस में हो रहा है? तो कैसे हो रहा है? और क्या उसमें कोई केमिकल चेंज है, रासायनिक बदलाव आ रहा है उनके अंदर, दोनों पत्तों के अंदर? तो वो रासायनिक बदलाव को स्टडी करूं या फिर कोई और तरीका अपनाऊं जिससे मेरे को पता लगे कि दोनों प्लांट आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। जैसे कोई स्पेशल वाइब्रेशन होता हो पत्तों में, हमको नहीं दिखता हो, बट हाई रिजोल्यूशन कैमरे से वो आपको दिख जाए। तो ये सारे जो हैं ऑब्जेक्टिव बेसिकली आपकी अप्रोच होती है, आप कैसे उस चीज को जानना चाहते हो, कैसे उस फैक्ट को पता लगाना चाहते हो, वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव होता है। टारगेट पॉपुलेशन, टारगेट पॉपुलेशन बेसिकली साइंस के अलावा जो दूसरे एरियाज हैं उसके लिए, खासतौर से तो कॉमर्स में है ये, या मैनेजमेंट में इसकी अप्रोच ज्यादा होती है। वो अप्रोच इस तरह से है कि क्योंकि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा वॉशिंग मशीन के बारे में या किसी और चीज के बारे में, तो हमको ये देखना है कि हम किस पॉपुलेशन को अप्रोच करें, हायर साइड को करें, मिडिल क्लास को करें, लोअर क्लास को करें या अपर मिडिल क्लास को करें, ये आपको देखना है। या आप पॉपुलेशन बेस्ड रिसर्च करें, जैसे एक रिसर्च पूरी अलग से हायर क्लास के लिए हो, दूसरी रिसर्च मिडिल क्लास के लिए हो, वो क्या सोचते हैं, और एक तीसरी रिसर्च जो लोअर इनकम ग्रुप के लिए हो, क्या वो वास्तव में वॉशिंग मशीन खरीदने चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो क्यों करते हैं? ये एक टारगेट पॉपुलेशन होती है और फिर उसमें ये तय किया जाता है। हेलो, हेलो मेरे यहाँ से वॉइस तो पूरी है, 100% है मेरे यहाँ से। सर, बीच में ब्रेक हो रही है सर। अच्छा, सर वॉइस क्लियर है सर। अब आ रही है? हाँ सर, बिल्कुल आवाज क्लियर है सर। हमें तो आवाज आ रही है सर। मुझे लग रहा है ये बार बार कुछ वो हो रहा है, बट देखता हूँ। चलो अब सर वॉइस क्लियर है एकदम। हाँ, अब हो जाएगी, अब हो जाएगी। मैंने थोड़ा चेंज किया। ओके सर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि टारगेट पॉपुलेशन में आपको तय करना पड़ेगा कि आप 50% बात करते हैं, 100 पॉपुलेशन से बात करना चाहते हैं, 1000 से बात करना चाहते हैं, 2000 से बात करना चाहते हैं। अब यहाँ एक बात आपको समझनी पड़ेगी इसमें, 50 आदमी का मतलब ये है कि क्वेश्चनेबल पार्ट खड़ा होता है। हमारे देश की पॉपुलेशन है 125 करोड़, 140 करोड़। उसमें अगर आप 50 आदमी को टच करते हो, या राजस्थान में सपोज 7 करोड़ पॉपुलेशन है, तो उसमें अगर आप 50 आदमी को कांटेक्ट करते हो तो वो इन्फॉर्मेशन जो है पार्शियल इन्फॉर्मेशन है, और बिल्कुल पार्शियल इन्फॉर्मेशन। लेकिन अब उसमें आप 1000 आदमी को कांटेक्ट करते हो तो चलो थोड़ा सा रीजनेबल है, लेकिन 15,000 और 20,000 को अलग अलग एरिया में आप कांटेक्ट करते हो, सेक्शन बना बना के, इस एरिया में मैं 2000 को करता हूँ, इसमें 2000 को करता हूँ, फिर उसको एक्यूमुलेट करता हूँ, तो वो इन्फॉर्मेशन फिर भी एक रीजनेबल इन्फॉर्मेशन। तो ये सब चीजें आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, टारगेट पॉपुलेशन और इसमें सोचना पड़ेगा। तीसरी बात आती है वेरिएबल्स की। वेरिएबल से मतलब ये है कि मैं वापस प्लांट की बात पे जाता हूँ, 2 प्लांट आपस में बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमको जानना है। लेकिन मैं अगर ये क्वेश्चन खड़ा करूं कि क्या एक तो 2 अलग स्पेसीज के प्लांट आपस में बात कर सकते हैं, क्या यह संभव है? एक तुलसी का पौधा हो और एक कैक्टस का पौधा हो, क्या ये आपस में बात कर सकते हैं? अगर करते हैं तो क्या इनके बीच में बात होती है? दूसरा, टेम्परेचर जो है उस कमरे का जहां आप ये सब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वहां टेम्परेचर ज्यादा है या बहुत कम है, तो क्या उसका इफेक्ट उस पर आ सकता है? बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है तो क्या उसका असर आ सकता है? इस तरह के जो फैक्टर्स हैं, इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। जो आपके ऑब्जर्वेशन को इन्फ्लुएंस कर सके, वो चीजें वेरिएबल्स कहलाती है। फिर बात आती है मेथड्स की, कि मेथड्स आप कौन कौन से लोगे।
कैसे अप्रोच करो, जैसे मैंने कहा कि मैंने पहले आपको बताया कि कौन सा कैमरा लोगे जिससे वो आपको दिखता हो, या ऐसा कौन सा कैमरा हो जिससे उसकी रिकॉर्डिंग हो सकती हो, या कोई ऐसा कैमरा हो जो बाकायदा आपको फ्रिक्वेंसी दे दे। वही इधर जब बात हो रही है तो यहाँ पे एक फ्रिक्वेंसी आई, जैसे कि मॉनिटर पे नहीं चलता, हार्ट के मॉनिटर पे ऊपर नीचे ग्राफ बनता है, तो उसी तरह से दोनों प्लांट का अलग अलग ग्राफ बने तो आपको लगेगा हाँ कुछ हो रहा है अंदर के बीच। तो एक्चुअली मेथोडोलॉजी बहुत सोच समझ कर तय करनी पड़ती है कि कौन सी मेथोडोलॉजी हम काम में लेंगे, ठीक है। अभी लिमिटेशंस, आप प्लान्स की बात कर रहे हैं सर, प्लान्स में तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक्ट कर रहे हैं ना क्या कर रहे हैं? अभी, as you are saying that two plants are talking with each other, so हाँ, here हाँ, I हाँ। feel independent variable is taking place. नहीं, इसमें वेरिएबल क्या हुआ? आप वेरिएबल को इसीलिए तो मैंने समझाया, मैंने कहा वेरिएबल तो ये हुआ ना, उसको वो जो बातचीत हो रही है उसको कौन अफेक्ट कर सकता है? वेरिएबल तो एयर हो गई, वही कह रही हूँ ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हवा है। हाँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, वो सब स्टैटिक्स में आता है एक्चुअली, है ना। ये तो वहाँ जनरलाइज पार्ट variable- है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल की बात जो है वो आती है वहां जाकर। यहाँ पर अपन सिंपल वेरिएबल की बात करें, सिर्फ समझने की बात करें स्कोप ऑफ रिसर्च को, ठीक है। ठीक, थैंक यू। ओके, व्हाई वी डू रिसर्च, हालांकि ये डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब मैं थोड़ा सा ये चलता हूँ कि व्हाट इज द फैक्ट, किसी भी एक के बारे में, किसी वस्तु के बारे में या किसी चीज के बारे में जो आप रिसर्च करना चाहते हैं, तो व्हाट इज द फैक्ट? A statement is a fact when we answer these two questions, one whether it is a true, और दूसरा क्वेश्चन हमारे साथ आता है कैन इट बी प्रूव्ड टू बी ट्रू, क्या हम उसको ये प्रूव कर सकते हैं जो हमने ऑब्जर्व किया वो बिल्कुल सही है, ठीक है। Why should you consider getting involved in research? कई पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे गेन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। आप किसी पर्टिकुलर एरिया में इंटरेस्ट रखते हैं, आप पीएचडी स्कॉलर ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप कोई रिसर्च में इन्वॉल्व होते हैं तो आपको एक एक्सपीरियंस होता है कि रिसर्च कैसे की जाती है, किसी के बारे में कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, एक आपको अंदाजा लगता है। दूसरा, अर्न एकेडमिक क्रेडिट, स्कॉलरशिप्स एंड स्टाइपेंड्स फंड्स फॉर कंडक्टिंग रिसर्च। आपकी जो लीडरशिप और टीम वर्क, लोगों के साथ काम करना और उनसे काम करवाने की जो आपकी क्षमता है उसको बढ़ाने की तरीका हो सकता है। टाइम को मैनेजमेंट, एक रिसर्च एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर होती है, और साइंस में तो खासतौर से टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो उस टाइम मैनेजमेंट को समझना, एक साथ कई चीजें करना, दैट इज नोन एज मल्टीटास्किंग। आप रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं साथ में, उसको टाइप भी कर रहे हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हम एनालिसिस भी साथ ही कर लेते हैं ताकि वो डेटा चेंज ना हो जाए जब कंप्यूटर पे हम रिकॉर्डिंग करते हैं। तो इस तरह की, इसको कहते हैं मल्टीटास्किंग, जो कई काम आप एक साथ कर सकते हैं। तो ये सब एक्चुअली उसके साथ जुड़ा हुआ है। और उसके साथ साथ जब आप कोई काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो यू ऑल्सो डेवलप, जब आप उसको कहीं बताते हैं या किसी से बात करते हैं, तो यू शुड नो हाउ टू और टू लर्न इफेक्टिवली कम्युनिकेट योर आइडियाज। आपके दिमाग में क्या बात चल रही है और उसको कैसे कम्युनिकेट करना है ताकि सामने वाला आदमी उसको समझे और उसको आप मतलब उसको जानने की कोशिश करे या उसमें अपना एक इंटरेस्ट डेवलप करे। तो इफेक्टिवली कम्युनिकेट कैसे करते हैं ये भी आप उसमें सीखने की कोशिश करते हैं। और ये भी हो सकता है कि आप उस पर्टिकुलर एरिया में एक रिकग्निशन चाहते हैं, यू शुड डू सम काइंड ऑफ डिस्कवरी, यू आर ऑलवेज रिकॉग्नाइज्ड। हम आगे चलते हैं। अब इस सब के लिए आपको करना क्या होता है? What you should do as a researcher, you seek answers to questions of great interest to you. Your research problem could be aesthetic, social, political, scientific और technical. वैसे इस पार्ट को मैंने ऑलरेडी समझा दिया। रिसर्च कई एरिया में हो सकती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो आप सोशल कोई काम कर रहे हो और कुछ जानने की कोशिश कर रहे हो, किसी अगर आप इंग्लिश में रिसर्चर है और एक ऑथर पर रिसर्च करते हैं, कोई राइटर है जिसने कई किताबें लिखी, जैसे चेतन भगत को ले लें, और उसकी करीब 10-12 किताबें जो बड़ी पॉपुलर हैं, और अब आप ये देखना चाहते हैं उसमें चेतन भगत किस तरह का राइटर है, किस तरह का पोजीशन बनाता है, वो किस तरह की थीम रखता है, और उसकी किताब क्यों इतनी पॉपुलर है, लोग क्यों पसंद करते हैं, ये एक रिसर्च का एरिया हो सकता है। ओके, तो इसी तरह पॉलिटिकल
कौन सी पॉपुलेशन जो है और इस एरिया में है, ये सब एक्चुअली रिसर्च का पार्ट है। तो every field of study has its research problems and approach method. रिसर्च प्रॉब्लम भी हर एरिया की अलग अलग है और उनको कैसे सॉल्व करना है, कैसे उनको इंफॉर्मेशन लेनी है, उसकी सब मेथोडोलॉजी अलग अलग। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि फाइंड आउट द काइंड ऑफ वर्क यू आर गुड एट। आपको ये ध्यान रखना है क्या काम, जैसे साइंस में खास तौर से अगर आप बहुत जिसमें उस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग होता। सर आपकी आवाज कटती है सर बीच बीच में काफी, यार क्या डिस्कंटिन्यू करूं मैं, होती है सर आपकी। इसका तो मैं कुछ कैसे हाँ निपटाऊं। सर, आवाज कट रही है। सर आप एक काम क्लियर नहीं आ आप कुछ मत कीजिए सर, माइक को थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। माइक जो आपका है ना वो माइक वो फुल दूर है, है आपसे। माइक फुल है। नहीं, माइक जो है ना वो शायद एडजस्ट कर लीजिए, ये तो उस पर कोई हो सकता है ऑब्स्टिकल हो। आई थिंक इको आ रहा है सर। इको आ रही है? जी सर। नहीं, इको नहीं है सर, आपकी आवाज गायब हो जाती है बीच में, पूरा सेंटेंस मिस हो जाता है पूरा का पूरा। ऐसे ऐसे हो रहा है मेरी बात जैसे आप थोड़ा सा भी हिलते हैं ना, जैसे अभी आप सर, पानी मेरी पीने के माइक लिए में डिस्टर्बेंस आ आप रहा थे है आपकी। तब। मेरी बात सुनिए, मैं कंप्यूटर के बिल्कुल पास में बैठा हूँ। ये कोई पहला लेक्चर नहीं है यार, मैंने बहुत से लेक्चर दिए तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ सर, रहा कि यस सर। ये तो क्या है कि वॉइस एक दो का जो सेंटेंस बार मिस है हो रहे वो हैं सर, पूरा कोई है, नहीं फुल है। तो मैं थोड़ी आवाज तेज कर देता हूँ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर देता हूँ उसको ताकि आपको सब सुनाई देगा साफ साफ। ठीक है, और उसके स्पीकर के नजदीक हूं मैं, स्पीकर भी पूरा है, तो पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। कई बार क्या नहीं होता है सर, कि नेटवर्क जो इश्यूज होता है। वाईफाई की भी प्रॉब्लम हो सकती है कई बार। मैं इसीलिए ऑनलाइन पसंद ही नहीं करता हूँ, वाईफाई की प्रॉब्लम्स कई बार आती है। ये वाईफाई से हो सकता है, बाकी ऐसे होना नहीं चाहिए। बट ठीक है, अब जो भी है देखते हैं, कोशिश करता हूँ आवाज बोलूंगा। ठीक है जी सर। एक मिनट क्या चल रहा था, चलो आगे चलते हैं। हाँ, अब क्वेश्चन यहाँ कि रिसर्च क्या करने के लिए की जाती है? रिसर्च इज डन टू व्हाट? पहला तो यह बिल्ड नॉलेज एंड लर्निंग इन पर्टिकुलर एरिया। एक नई इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन देखना, उनको एनालाइज करना और फिर उसको समझना उस एरिया को, ये बेसिकली रिसर्च इसलिए की जाती है। दूसरा इसलिए उस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में या उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में जो अननोन फैक्ट्स हैं, जिसको आज तक हम समझ नहीं पाए या जिसके बारे में हम जानते नहीं है, उनको इकट्ठा करना और फिर उनको समझना। जो कुछ रिसर्च डेटा हम इकट्ठा करते हैं और अगर हम उनको कहीं प्रेजेंट करते हैं, कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करते हैं, पब्लिश थीसिस की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, कोई रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, और वो डेटा अगर दे आर एक्सेप्टेड बाय large number of researchers working in that area or in the other area or general population, then you build a credibility that you are a good researcher, or you research some good facts and try to find out some new facts about a particular thing to prove lies and support truths. बहुत से ऐसी चीजें हैं जिसमें रिसर्च में, एक मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देता हूँ, क्योंकि मैं साइंस से रिलेटेड हूँ और जूलॉजी से रिलेटेड हूँ और बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड हूँ। अब शायद आपसे पहले किसी ने बात की या नहीं की, बट जैसे मैंने कोई रिसर्च की और रिसर्च पेपर पब्लिश किया, अब ये जरूरी नहीं है कि बस मैंने पब्लिश कर दिया और बात खत्म हो गई और मैंने ये कहा कि ये ए बहुत अच्छा है, दिस कैन बी, की बात ले लेता हूँ, कोई तुलसी की बात ले लेता हूँ, मैं अपनी रिसर्च के द्वारा ये पेपर में बताता हूँ कि तुलसी को मैंने रिसर्च किया और उसके अंदर जो केमिकल प्रेजेंट है वो आपकी एज को बढ़ाता है। ठीक है, मैंने रिसर्च कर दी और उसके साथ में डेटा दे दी, भाई ये इस तरह से एज को बढ़ाता है, चूहे पर काम करूंगा या कोई करूंगा। लेकिन बाकी दूसरे जो लोग हैं वो ऐसा नहीं है कि उस रिसर्च को छोड़ देंगे और अलग अलग लेबोरेटरी में ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो बात मैं कर रहा हूं वो सही है या गलत है। अब उसमें से वापस नए पेपर्स आएंगे तुलसी पर, उसमें से कुछ पेपर ऐसे होंगे जो मैंने जो मेथोडोलॉजी यूज की है उस मेथोडोलॉजी को यूज करेंगे
और वो ये कहेंगे कि डॉक्टर भटनागर जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और हमने हमारी रिसर्च में भी पाया कि ये सही है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जो ये कहेंगे कि डॉक्टर भटनागर ने ये गलती की है, इनको इसको इस तरह से करना चाहिए था, जो मेथोडोलॉजी इन्होंने यूज की वो गलत है, या इन्होंने जो सैंपल लिया है वो गलत है, या इनका जो प्लांट है वो अलग है और हमारे पास जो प्लांट है वो अलग है। बट बेसिकली ये जो बात कर रहे हैं वो सही नहीं है। सो रिसर्च एक्चुअली इसलिए भी की जाती है, या आपके बारे में, जैसे किसी के बारे में कोई ट्रुथ आपको पता है या कोई लाइफ पता है और आप उसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं और फिर आप कहते हैं कि नहीं ये जो बात कह रहे हैं ये पूरी गलत है, और उसके लिए आप फैक्ट्स इकट्ठा करके देते हैं। सो दैट इज रिसर्च। और इसीलिए हम बेसिकली जो गलत बात है या जो लाइज हैं उनको बेसिकली ट्रुथ सामने लाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है फाइंड गॉज एंड साइज अपॉर्चुनिटीज। बेसिकली गॉज का मतलब पैमाना जिससे आप नापते हो। तो ये बात वापस वही आती है कि आप किस तरह से उस रिसर्च को अप्रोच करते हो, आपकी है या आपके जो पैसेज हैं, चाहे वो मैनेजमेंट में हो, चाहे सोशल साइंस में हो, चाहे आर्ट्स में हो या फिर साइंस में हो, आप किस तरह से एप्रोप्रिएट मेथड्स सेलेक्ट करते हो ताकि आपको लाइज के बारे में, ट्रुथ्स के बारे में सही सही पता लगे। और फिर पैशन फॉर रिसर्च, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें पैशन होती है मुझे रिसर्च ही करनी है और मुझे कुछ भी कुछ नया पता लगाना है, तो वो फिर उस पर रिसर्च करते हैं और बाकी लोग जो है अपने कैरियर को बूस्ट करने के लिए रिसर्च करते हैं। सो दीज आर बेसिकली दे why people involve themselves in a research। अब किसी रिसर्चर का काम क्या है? वैसे तो यही सब है, तो मैं इसके डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वही सब उसका काम है। तो रिसर्च कैसे की जा सकती है? देखिए, एक तो तरीका जैसे है जिसमें बेसिकली इंटरव्यूज किए जाते हैं, 1-to-1 बातचीत की जाती है और आपके पास होता है उसको आप किसी से बात करते हैं या अलग अलग लोगों से बात करते हैं, फिर उनके जो व्यूज हैं उन व्यूज को आप कलेक्ट करते हो। दूसरा तरीका है जनरल पॉपुलेशन के बीच में आप क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट करते हो और फिर वो इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हो और उसको फिर एनालाइज करते हो। टारगेट रिसर्च में टेलीफोन के द्वारा भी रिसर्च होती है या पर्टिकुलर सर्वे किया जाता है, जैसे आपके पास कई आजकल फोन कॉल आते होंगे और एक पर्टिकुलर डेमोग्राफिक नंबर, मतलब एक पॉपुलेशन का नंबर तय करके फिर ये इंफॉर्मेशन की जाती है। इसके अलावा जो पॉसिबिलिटी है वो है लाइब्रेरीज में जाके। मैं आगे कुछ उस पॉइंट पे आऊंगा बट अभी सब इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बेसिकली लाइब्रेरीज में न्यूज़पेपर के में कई इंसाइक्लोपीडियाज होते हैं जिसमें पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन होती है कई सब्जेक्ट्स के बारे में, उनमें मैगजीन्स में जो होता है उसमें, पीरियोडिकल्स में, लॉ के बारे में अगर बात करें तो केस पब्लिश होते हैं भारत सरकार के द्वारा, उसमें कई लेजिस्लेटिव रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे कोई मर्डर के बारे में कुछ कर रहे हैं तो उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन आप लेते हो। हिस्ट्री में अगर आप कर रहे हो तो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट जो पुराने हैं उनको आप देखते हो और उसी के साथ पब्लिक ओपिनियन आप लेते हो। ये एक तरीका है इंफॉर्मेशन को गैदर करने का। और साइंस में तो बेसिकली जैसे आप सब समझते हैं, साइंस में तो यू हैव टू वर्क इन द लेबोरेटरी सेल्फ एंड परफॉर्म सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स टू गेट द करेक्ट इंफॉर्मेशन। इसी रिसर्च की कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं? 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। जैसे पहला है एम्पिरिकल रिसर्च इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशंस बाय रिसर्चर। अब ये किसी भी सब्जेक्ट पर ऐसा ही हो सकता है कि एक तो ये है कि आप लोगों से काम कराते हो, किसी एजेंसी से काम कराते हो, और एक ही है कि आप डायरेक्ट उस स्टडी को करते हो, डायरेक्ट इंटरव्यू करते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन बना के और फिर लोगों से इंफॉर्मेशन लेते हो, उसको हम एम्पिरिकल रिसर्च कहेंगे। लॉजिकल रिसर्च इज बेस्ड ऑन वैलिड प्रोसीजर्स एंड प्रिंसिपल्स। एक अच्छी रिसर्च, एक सोची समझी रिसर्च को हम लॉजिकल रिसर्च कहते हैं। जैसे ये प्लांट के बारे में तो मैंने बात की, 2 प्लांट आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ये एक बहुत नया आइडिया है, कोई कभी सोच सकता है कि ऐसा हो सकता है। ये पहली बार इंफॉर्मेशन इस तरह के, बहुत पहले एक बार जगदीश चंद्र बसु का एक एक्सपेरिमेंट शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, हमारे बहुत बड़े रिसर्चर थे, हालांकि उनको
नोबेल प्राइज के लिए उनको भी नॉमिनेट किया गया था, बट उनको कभी नहीं मिला। बट उन्होंने पहली बार ये बताया था प्लांट में कि प्लांट में भी जीव होता है, जैसे ह्यूमन में जीव होता है, प्लांट में भी जीव होता है। दिस वाज हिज रिसर्च। मैं सोचता हूँ कि एक बहुत बड़ी रिसर्च थी, तो यह सोचते दिमाग में कि प्लांट में भी जीव होगा। और अभी ये जो नई रिसर्च है वो ये सोच सकती है, ये लॉजिकल रिसर्च है, और इनके बारे में वैलिड सपोर्ट जब तक आपके पास नहीं होगा तब तक कोई इसको बिलीव नहीं करेगा। ओके। साइक्लिकल रिसर्च, साइक्लिकल रिसर्च से मतलब ये है कि आप एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हो, उसके बारे में पूरी खोजबीन करते हो, और वो खोजबीन अल्टीमेटली जाके कुछ नए क्वेश्चंस पे खड़ी होती है। ऐसे बहुत से रिसर्च हैं। ओके। फिर बात आती है एनालिटिकल रिसर्च की। ये ज्यादातर केमिस्ट्री में होता है। क्रिटिकल, जैसे कुछ चेतन भगत की किताबें हैं, आप 12 ही किताबें ले लेते हैं, फिर उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि उसमें उसने क्या लिखा है, फिर एक क्रिटिक की तरह। जैसे आप हर किताब पर अपना कमेंट करेंगे कि इस किताब में उसने जो लिखा है उसमें ये है, और मैं इसको इस तरह से समझ, ये क्रिटिकल टाइप ऑफ रिसर्च हो जाएगी। मेथोडोलॉजिकल रिसर्च वो रिसर्च है जिसमें एक कुछ मेथड्स को तय करके, पहले से डिसाइड करके, फिर आप एक रिसर्च की अप्रोच करते हैं, जो ज्यादातर साइंस में होता है। रेप्लिकेबिलिटी से मतलब यह है, मैंने कोई काम किया है, और जैसा मैंने कहा कि दूसरी लैब में अगर आदमी उस काम को उन्हीं कंडीशंस में, सेम कंडीशंस के अंदर वापस रिपीट कर सकता है और वही रिजल्ट ला सकता है, दैट इज नोन एज रेप्लिकेबिलिटी। सो ये 7 तरह के रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। रिसर्च कई तरह की हो सकती है। वैसे बेसिकली इनको 4 क्लासेस में बांटते हैं, इसलिए कोर ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी को हम कहते हैं, और ये 4 हैं। थ्योरेटिकल, फिजिक्स में आजकल काफी थ्योरेटिकल काम हो रहा है, पिछले कई सालों से हो रहा है। हालांकि फिजिक्स में आप जानते हैं कि ज्यादातर इंस्ट्रूमेंटेशन होता है और उसके थ्रू ही रिसर्च होती है, लेकिन फिजिक्स का एक नया एरिया डेवलप हो गया है जिसको हम थ्योरेटिकल फिजिक्स कहते हैं। अब ये एरिया धीरे धीरे दूसरे एरिया में भी जा रहा है। केमिस्ट्री में भी आजकल थ्योरेटिकल होने लगी है, और साइंस बायोलॉजी में भी थ्योरेटिकल रिसर्च होने लगी है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हम कोई एक एरिया सोच लेते हैं, जैसे सपोज सन है। अब सन में आपने पढ़ा होगा कि रोज सुबह से शाम तक सन के अंदर बहुत से चेंजेस होते हैं। आपको ये भी बताया होगा किसी ने कि सन के अंदर काले पैचेस, आप जब सन की तरफ देखते हो किसी बायनोकुलर से, तो उसके अंदर काले पैचेस नजर आते हैं। ये पैचेस एक्चुअली, और उसके साथ साथ उसके बाहर जो आपको एक ऑरा दिखता है थोड़ा सा डार्क, एकदम रेड, तो इसको अगर किसी बड़े उससे देखेंगे आप, सोलर माइक्रोस्कोप से या सोलर दूरबीन से, तो उसमें अंदर एक्चुअली जैसे आग की लपटें होती है वैसे दिखाई देती है। तो उनका एक टाइम तय है, कभी वो कम होती हैं, कभी बहुत ज्यादा बढ़ती हैं, और इसी तरह से जो काले पैचेस हैं कभी बढ़ते हैं कभी घटते हैं। तो आप एक पैटर्न किसी ने रिसर्च की होगी, उसको आप समझते हो, फिर उसका अपने आप बैठे बैठे एनालाइज करते हो और अपने इंटरप्रिटेशन लिखते हो। ये एक तरह की थ्योरेटिकल रिसर्च है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जैसे मैंने कहा कि साइंस में होती है, कि आप जो रिसर्च करते हैं वो लैब बैठ के करते हैं। साइंस बायोलॉजी में आप केमिकल यूज करते हैं, बॉटनी में आप प्लांट यूज करते हैं, केमिस्ट्री में एक्चुअली सिंथेसिस होती है, वो नया केमिकल, 2 केमिकल को मिला के 3 केमिकल मिला के तीसरा केमिकल बनाते हैं। और मैथमेटिक्स में और स्टैटिस्टिक्स में आप देख ही सकते हैं, न्यूमेरिकल रिसर्च और स्टैटिस्टिकल रिसर्च होती है। और इन्हीं के साथ साथ ये भी हो सकता है ये क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव। साइंस बायोलॉजी में क्वांटिटेटिव हो सकती है, थ्योरेटिकल में भी क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव हो सकती है, और ये हो सकता है या सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट हो सकता है। तो ये बेसिकली रिसर्च का कोर है या टाइप्स हैं। अब गुड रिसर्च क्या है, इसके लिए तो एक वर्ड आता है, वो है डोएबल। डोएबल का हिंदी में मतलब है कि अकम्प्लिशेबल और साध्य। आपने एक फ्रेमवर्क बनाया, एक प्रोजेक्ट बनाया, और प्रोजेक्ट बनाने के बाद आप प्रोजेक्ट बनाने के समय इस बात का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या ये काम अगर मैं शुरू करूंगा तो ये काम खत्म हो जाएगा एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, क्योंकि आपको पीएचडी लेनी है।
तो 3 साल में, 4 साल में, जो भी आपका एक टाइम पीरियड है या जो आपने तय कर रखा है कि इस टाइम के अंदर अंदर मेरे को काम खत्म कर देना है या 1.5 साल के अंदर काम खत्म कर देना है, तो जो काम का जो टाइटल आप लोगे या जो प्रोजेक्ट आप बनाओगे, उस प्रोजेक्ट को कुछ इस तरह से बनाना है कि वो एक टाइम फ्रेम के अंदर पूरा हो जाए, लेकिन वो स्टैंड कर सके आगे के लिए, ताकि जहां आप छोड़ो वहां से फिर मैं शुरू कर सकूं। आप जो रिजल्ट लाओगे उसको मैं फिर पकड़ूंगा और उसको आगे ले चलूंगा। तो एक इस तरह की रिसर्च होनी चाहिए जो कि कंटिन्यूटी बना के रखे और उसमें रिजल्ट्स अचीव किए जा सके। रिप्लिकेबल इन फ्यूचर, ये मैंने अभी आपको कह दिया कि आपने काम कर दिया, पब्लिश कर दिया, डेटा जनरेट हो गए, सब जगह चले गए, लेकिन 10 साल बाद भी अगर मैं उस काम को उठाऊं तो आपके काम की क्रेडिबिलिटी तब बन जाती है अगर मैं उस काम को करूं तो वो काम वापस रिप्लिकेबल, ठीक है। अगर वो रिप्लिकेबल नहीं है तो उस काम की वैल्यू सिर्फ 2% है। हर काम के साथ एक थ्योरी होनी चाहिए, एक कोई हाइपोथेसिस, कोई ऐसा दिमाग में आप बात जनरेट करेंगे और उसको जैसे स्टैटिस्टिक्स में कहते हैं कि प्रूव द हाइपोथेसिस और नॉट प्रूव द हाइपोथेसिस। ओके, तो अब क्वेश्चन ये है कि वो थीसिस प्रूव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वो तो अलग चीज है, लेकिन हर एक के साथ कोई न कोई एक थ्योरी जरूर अटैच होनी चाहिए। जैसे सपोज चेतन भगत के बारे में मैं एक थ्योरी सजेस्ट कर दूं कि चेतन भगत एक क्या कहना चाहिए क्रिमिनल राइटर है। अब आपको उसके जो बुक्स हैं, 12 बुक्स हैं, हालांकि वो क्रिमिनल राइटर नहीं है, लेकिन अगर आपने थ्योरी बनाई है कि वो क्रिमिनल राइटर है तो उसके 12 किताबों को पढ़ के आपको तय करना पड़ेगा और इस तरह से डेटा निकालना पड़ेगा उससे, सो दैट यू कैन प्रूव इट ही इज अ क्रिमिनल राइटर या ही इज यूजिंग द क्रिमिनल स्टोरीज। ओके, तो ये थ्योरी होती है और थ्योरी जो आप बनाते हो फिर उसको आपको प्रूव करना होता है। लेकिन इसके साथ कुछ नए क्वेश्चन जनरेट होने चाहिए, जैसे मैंने यहाँ नीचे लिखे हैं, इट मस्ट बी कंसेप्चुअली क्लियर। अब मैंने जैसे कहा अभी चेतन भगत के बारे में कि आप क्रिमिनल राइटर उसको शो करना चाहते हैं, हो सकता है आप में से सबने 12 किताबें पढ़ी हों, मैंने तो सभी पढ़ी हैं और मुझे कहीं नहीं लगता वो क्रिमिनल राइटर है, मैंने सोच तो लिया। तो क्वेश्चन ये है कि मैं अगर ऐसा कोई पॉइंट सोच रहा हूं तो कम से कम दिमाग ये तो लगाऊं कि क्या मेरे लिए संभव होगा कि मैं उसको ये प्रूव कर सकूं वो क्रिमिनल राइटर है। तो कंसेप्चुअली, इस वर्ड को कहते हैं कंसेप्चुअल थिंकिंग। तो ऐसी थ्योरी आनी चाहिए कि जो आप वास्तव में प्रूव कर सको और जो टेस्टेबल हो, इसको टेस्ट किया जा सके तरीके से, या दूसरे उसको चैलेंज कर सके आपकी मेथडोलॉजी को। जो आप अप्रोच काम में लोगे, जैसे साइंस में खासतौर से जो मेथड्स आप काम में लोगे, 4-5 मेथड्स जो आप काम में लोगे, वो मेथड्स उस थ्योरी के साथ स्टैंड करना चाहिए। और फिर जो कुछ आप इन्फेरेंस निकालते हैं, इन्फेरेंस मींस रिजल्ट निकालते हो या इंटरप्रिटेशन निकालते हो, इट शुड बी कंसर्न विथ ऑल। ये बेसिकली रिसर्च में आपको ध्यान रखने की जरूरत है, इसी को हम एक गुड रिसर्च कह सकते हैं। किसी रिसर्चर की स्किल्स क्या हो सकती, ये इसी में वैलिडिटी आएगी इन पॉइंट के साथ ही। व्हाट आर द स्किल्स ऑफ अ रिसर्चर और क्वालिटी ऑफ अ गुड रिसर्चर? सबसे पहली बात, he must have adequate knowledge of the subject he is interested in. जिस सब्जेक्ट में वो काम करना चाहता है उसके बारे में पहले पूरा बैकग्राउंड डेटा उसको पढ़ा हुआ होना चाहिए या उसको मालूम होना चाहिए। हम साइंस में जनरली जब डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी पॉपुलेशन है इसलिए मैं उस तरह की बात नहीं कर रहा हूँ पूरा, बट बेसिकली हम ये कहते हैं कि जो आप रिसर्च कर रहे हैं उसमें ओरिजिन ऑफ रिसर्च और गैप इन रिसर्च 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सपोज कोई चीज मैं सोच रहा हूं कि भाई किस पे काम करूं और कई पॉइंट्स मेरे सामने है या कई एरिया मेरे सामने है, उसमें से मैं ये ढूंढूं कि ये जो काम किसी ने किया है इसमें कहाँ कुछ ऐसी चीज रह गई है जो वो खोजने से क्यों किया, तो मैं फिर पकड़ लूं। दैट इज नोन एज अ गैप ऑफ रिसर्च, है ना। तो एक तो इस तरह से ढूंढी जाती है रिसर्च का एरिया। तो आप तभी ढूंढ पाओगे उस गैप को जब आपको उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में या उस रिसर्च के बारे में पूरा पता होगा। सो आइदर यू हैव टू रीड द बुक्स
you have to read the research papers that are published in that area, और कहीं और दूसरी इंफॉर्मेशन है जो उसमें खासतौर से इस तरह की गैस ढूंढने का सबसे अच्छा आइडिया है रिव्यू आर्टिकल पढ़ना, क्योंकि उन रिव्यू आर्टिकल्स में जो ऑथर है वो कई सारे रिसर्च पेपर्स को, सारी रिसर्च को पढ़ पुढ़ा के एक समराइज व्यू देता है और उसके साथ में वो ये डिस्कस करता है कि इसमें क्या चीजें छूट गई है। तो वहां से आपको एक आइडिया मिल सकता है कि मेरे को अब किस चीज को पकड़ना है या किस चीज पर रिसर्च करनी है। ओके, रिसर्चर मस्ट बी कंसेप्चुअली डिटरमाइंड। जब वो एक बात तय कर लेता है अपनी थ्योरी को, तो फिर उसको तय होना चाहिए अब मेरे को इसके साथ जाना है, चाहे मैं इसको प्रूव करूं चाहे मैं इसको प्रूव ना करूं। हमारे देश में सबसे बात यह है कि हम कोई भी थ्योरी तय करते हैं तो हम उसको पॉजिटिव स्टैंड से लेते हैं। पॉजिटिव मीन्स तो हम हमेशा एक बात को तय करते चलते हैं कि अब इसमें तो पॉजिटिव रिजल्ट निकालना है, ये सक्सेसफुल होनी चाहिए। जबकि मैं सोचता हूँ कि जैसे सपोज तुलसी का पौधा है, सारे लोग ये कहते हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसको यूज करना चाहिए, लेकिन मैं ये सोचूं मैं अगर किसी तरह से पूरे टेक्स्ट के साथ ये प्रूव कर दूं कि तुलसी कर सकता है, तो इसमें क्या गलत है? ये एक नई इंफॉर्मेशन है ना। तो बेसिकली आपके दिमाग में एक कंसेप्ट पूरा क्लियर लो होना चाहिए आपकी रिसर्च के बारे में, जो काम आप करने जा रहे हैं उसके बारे में। सर प्लीज, सर कुड यू प्लीज रिपीट योर सेंटेंस? आपने क्या बोला कि आप क्या प्रूव कर दो? वो ऑडिबल नहीं था। मैंने ये कहा कि बेसिकली अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें ये होना चाहिए कि ये कोई जरूरी नहीं है कि आप पॉजिटिव साइड से ही चलें कोई थ्योरी बनाए तो कोई रिसर्च के बारे में। पॉजिटिव से मेरे कहना मतलब ये है कि हम ज्यादातर इसमें चलते हैं कि अरे अगर कोई नेगेटिव रिजल्ट आ जाएगा तो मेरी थीसिस का क्या होगा। हमारे गाइड जो हैं सुपरवाइजर वो भी इसी एरिया में सोचते हैं कि नहीं हमको ये कहना है बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बार ये होता है कि किसी चीज के बारे में जो फैक्ट चल रहे हैं, अगर आप ये सही तरीके से उसको प्रूव कर सको डेटा के साथ कि नहीं ये सही नहीं है, तो वो भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि आप ये बता रहे हो कि जो गलत धारणा चल रही है, जो गलत इंफॉर्मेशन चल रही है, उसको आपने सही किया। तो नेगेटिव रिजल्ट्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट। खासतौर से साइंस में तो नेगेटिव रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे यहाँ हमारे देश में बेसिकली नेगेटिव रिजल्ट्स को इम्पोर्टेंस दी नहीं जाती। हम उन डेटा को भी अवॉइड करते हैं। कई बार बहुत से लैब में होता है ऐसा, मैं जानता हूँ, मैं पिछले 40 साल से रिसर्च कर रहा था, मेरे को सब पता है कि क्या हो रहा है कई जगह। बहुत से पेपर मैंने चेक किए हैं, तो जो नेगेटिव रिजल्ट्स है उनको छुपा देते हैं, जबकि हम अगर मान लीजिए सर मैंने, हाँ जी सर, मैंने अगर नेगेटिव कुछ प्रूव कर दिया एज आई एम फ्रॉम स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, तो मेरा वो पहले फर्स्ट सेकंड स्टेप पे ही रिजेक्ट हो जाएगा? नहीं होगा ऐसा। अच्छा, ऐसा क्यों होगा? आप ऐसा क्यों सोचते हैं रिजेक्ट हो जाएगा? हाँ, जैसा आपने बोला ना कि उसमें नहीं, देखिए अब वहां पर मैंने एक बात और कही थी साथ में कि उसको सपोर्ट करने के लिए फैक्ट्स होने चाहिए। आज आप अगर मेरे को कन्विंस करना चाहें कि साहब ये जो स्पोर्ट्स में एक्टिविटी आप करा रहे हो इससे बॉडी को नुकसान होता है, सपोज हम यूं मान लें, तो फिर क्वेश्चन ये है कि आपको उसके फैक्ट तो देने पड़ेंगे ना कि ये नुकसान होता है। आपको मेरे को शो करना पड़ेगा ना विद डेटा या विद फोटोग्राफ या विद मेरे ख्याल से किसी मेडिकल लैब से उसके वो निकाल के लाए सारे, प्रूव करना पड़ेगा। आप यूं आप कहते हो साहब इससे नुकसान होता है तो कौन मानेगा? मैं भी नहीं मानूंगा, कोई नहीं मानेगा। लेकिन तो सर वो चीज, हाँ जी सर, वो नेगेटिव, हाँ तो सर वो नेगेटिविटी जो है उसको प्रूव करने के लिए मींस मेरे को मेरे ऑब्जेक्ट पे वो वेरिएबल्स पुट करके वो लाने पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल सही, वही बात आप समझ गए इस बात, बिल्कुल करना ही पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सर। दूसरा, रिसर्चर शुड बी एबल टू स्पेंड इनफ टाइम। रिसर्च में ये है कि आपको दिन और रात नहीं देखनी पड़ती, फिर आपको पूरा लगना पड़ता है, ये भी एक बात है। डेडिकेशन होनी चाहिए। आप एक ये समझ होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पूरा डेटा पढ़ते हैं तो इंटरप्रिटेशन आपके बहुत आसान हो जाता है इसमें चीज। मैंने कई बार एक चीज और देखी है, लोग ऐसा तो बात कर लेते हैं, लेकिन जो चीज उसमें देखनी है, जो बदलाव देखना है या जो चेंज स्टडी करना चाह रहे हैं, वो स्टडी को नहीं पाते। जैसे हमारे साइंस बायोलॉजी में जैसे हम स्लाइड बनाते हैं, सपोज जैसे तुलसी प्लांट की बात कर लें, या मैं जैसे ब्रेन पे काम करता हूं तो मैं ब्रेन को पतली पतली पट्टियों में काटता हूं, फिर उसको स्टेन करता हूं अलग अलग रंग से,
और फिर मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि इसके अंदर क्या चेंज है। तो वो चेंज अगर मैं पकड़ सकता हूँ, लेकिन वो पकड़ तभी पाऊंगा जब मेरे को पुरानी पूरी स्टडी होगी, मेरे को ब्रेन की पूरी नॉलेज होगी। अगर मेरे को ब्रेन की पूरी स्ट्रक्चर की नॉलेज नहीं होगी तो मैं उस बदलाव को पकड़ूंगा कैसे, या कहाँ, क्योंकि वो चेंज ऐसा तो है नहीं पूरे ब्रेन में हो रहा है, किसी एक जगह हो रहा है। तो उस पर्टिकुलर जगह पे आके और वहां समझना, ओ यहाँ पर बदलाव है, ये तभी संभव है जब आपको पूरा रिसर्च का बैकग्राउंड पता हो उस पर्टिकुलर एरिया। जैसे अल्जाइमर डिजीज के बारे में तो आप सब जानते हैं, चाहे आप स्पोर्ट्स के हों या किसी और का, जिसमें भूलने की बीमारी होती है, तो उसमें ब्रेन के एक छोटे से हिस्से में बदलाव होता है, उसी वजह से मतलब बीमारी होती है। अब अगर मैं किसी को कहना चाहूँ कि भाई तुम्हारे अल्जाइमर डिजीज है, तो मेरे को वहां जो चेंज हो रहा है उसको पकड़ना आना चाहिए। जब मैं एनालिसिस करता हूँ पूरी, जैसे सीटी से या एमआरआई से हम देखते हैं पूरा, आपने एमआरआई आप सबने देखी होगी, छोटे छोटे फोटोग्राफ होते हैं उसके अंदर, तो उन फोटोग्राफ को देखना और फिर उनको समझना, अच्छा नॉर्मल में तो ऐसा होता है, इसमें यहाँ पर ये चेंज हुआ है, लेकिन आपको नॉलेज होगी तभी तो आप पकड़ सकोगे उसको कि इस पर्टिकुलर एरिया में चेंज हुआ है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होना बहुत जरूरी है। जो डेटा है उनको कैसे ऑर्गेनाइज करना है और कैसे रिप्रेजेंट करना है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कई बार क्या होता है कि आप किसी डेटा को इकट्ठे करते हो, न्यूमेरिकल डेटा होते हैं, कोई स्टडी होती है, और फिर उनको रिप्रेजेंट करना है, जैसे आपने सब उनको लाइन डायग्राम से एक्सप्लेन कर दिया। अब कई बार क्या हो, कुछ डेटा के साथ लाइन डायग्राम, आप जैसे मैं उसको देख रहा हूँ तो मेरे को एकदम इंप्रेशन नहीं आता उससे, फिर मेरे को पूछना पड़ेगा तो इसमें ये जो चेंज है ये क्या शो करता है। लेकिन अगर सपोज मैं बार चार्ट से शो करूं तो छोटा बार चार्ट और बड़ा चार्ट मेरे को दूर से दिखाई देता है, अच्छा यहाँ पर चेंज है और यहाँ मैक्सिमम चेंज है और यहाँ कम चेंज है। सो आपको डेटा का इंटरप्रिटेशन आना चाहिए या उनका प्रेजेंटेशन आना चाहिए, उसको हम किस तरीके से प्रेजेंट करें और सही ढंग से प्रेजेंट करें ताकि सामने वाला उस चीज को अच्छी तरह समझ सके। और इसी तरह से स्टैटिस्टिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है आज के तारीख में, कोई भी रिसर्च पेपर बिना स्टैटिस्टिक्स के अच्छे जर्नल्स में एक्सेप्ट नहीं होता है, और स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिक्स, और उसमें भी ऐसा नहीं है कि जैसे मेरे ख्याल से काफी लोग जानते होंगे हिंदी अंग्रेजी का, तो उनके लिए तो जरूर नहीं है, बट बाकी लोगों के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर उसमें सपोज ये क्या कहते हैं स्टूडेंट टी टेस्ट लगता है या काय स्क्वायर टेस्ट लगता है, तो बहुत सिंपल टेस्ट है। लेकिन अब अगर सपोज एक टेस्ट है जैसे अनोवा, उसको कहते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, लेकिन अगर आप एनालिसिस ऑफ वेरिएंस लगाना चाहते हैं तो डेटा वो अलग है, वो अलग तरीके से डेटा जनरेट होते हैं। आपको एक्सपेरिमेंट प्लानिंग ही शुरुआत में कि आप एनालिसिस ऑफ वेरिएंस बाद में लगा सके, और फिर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के साथ आजकल बहुत से जर्नल्स ऐसे हैं जो उसके ऊपर का टेस्ट मांगते हैं। वो कहते हैं कि आपने एनालिसिस वेरिएंस का जो डेटा लिया है इसको आपने पोस्ट हॉक टेस्ट HOC पोस्ट हॉक टेस्ट से वापस वेरीफाई किया है या फलाने टेस्ट से वेरीफाई किया है, नहीं है, वो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के ऊपर का टेस्ट है और वो आपको वैलिड बनाते हैं। तो लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ यह है कि आप जो टेस्ट लगाना चाहते हैं उसको पहले से सोच के चले। सिंपल डेटा में टी टेस्ट लग जाता है आराम से, बट टी टेस्ट इज नॉट द फाइनल डेटा। बड़े जर्नल में तो आप पब्लिश करना चाहते हैं और डेटा को जनरेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए बेसिकली एनालिसिस ऑफ वेरिएंस और उनके ऊपर के टेस्ट जिनको पोस्ट हॉक टेस्ट कहते हैं, जो उसको भी वैलिडेट करते हैं, वो टेस्ट लगाना चाहिए। के साथ साथ उसके लिए डेटा कैसे जनरेट चाहिए वो क्या होना। अब स्टेप और रिसर्च मैं ब्रीफली इनको डिस्क्राइब करता हूं ताकि फिर अपन वैलिडिटी ऑफ रिसर्च पे आ जाएंगे इनके बेसिस पर, और इसी से थोड़ा सा आपको और अंदाज लगेगा कि आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। सो स्टेप 1 है डेवलप सिलेक्शन ऑफ ए टॉपिक। टॉपिक सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक आप सही टॉपिक जो आपके मन के अंदर है उसके बेसिस पर टॉपिक अगर आप सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आप रिसर्च को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। सेलेक्ट करने के कई तरीके, एक तो ये मेरी जनरल ऑब्जर्वेशन, मैं क्या ऑब्जर्व करता हूँ उस पे बेसिस। एक मेरा कोई एक्सपीरियंस, मैं एक बात बताता हूँ कि मेरी वाइफ एक्चुअली यूनिसेफ में एडवाइजर थी, वो मेडिकल डॉक्टर हैं, प्रोफेसर है मेडिकल कॉलेज में, और वो यहाँ डूंगरपुर में हमारे उदयपुर के आसपास कई एरिया है जहाँ पर फ्लोराइड बहुत होता है पानी के अंदर ड्रिंकिंग वाटर में,
और फ्लोराइड की एक खास बात यह है कि अगर आप ड्रिंकिंग वाटर के साथ कई साल तक फ्लोराइड को पीते रहो, आपको पता तो नहीं होता कितना होता है, लेकिन वो अल्टीमेटली क्या है कि आपकी जो बोन्स है उनको स्टिफ कर देता है, तो बोन्स हिलती नहीं है, धीरे धीरे आपकी रीढ़ की हड्डी झुकने लगती है। बहुत खराब बीमारी है इसे, उसका ठीक होना भी बहुत मुश्किल है, एक बार हो जाए तो, है ना, जॉइंट्स आपस में चिपक जाते हैं, ब्लड में जो सेल्स है वो खराब हो जाए, ऐसी बहुत सी चीजें हैं। तो एक्चुअली मैं उनके साथ जाता था कई बार ऐसे ही कि भाई अच्छा देखें आप क्या कर रहे हो। तो एक डूंगरपुर के पास एक गांव में मैंने ऑब्जर्व किया कि वहाँ जो लोग हैं उनको आप जैसे कहो कर भाई पानी लाना, तो वो आधे घंटे तक 1 घंटे तक उसने सुन तो लिया, उठ के गया और फिर आया नहीं। बाद में जब आया मैंने उससे पूछा, मैंने तुमसे कहा था पानी लाना है साहब, आपने कहा था क्या? यू फॉरगेट। मैंने कहा ये इस तरह की चीजें बहुत से लोगों में क्यों दिखाई दे रही। सो आई ट्राई टू स्टडी इट, ठीक है, और ये जानने की कोशिश की कि क्या फ्लोराइड नर्वस सिस्टम के काम को अफेक्ट करता है या ब्रेन के काम को अफेक्ट करता है। तो मैंने अपना प्रोजेक्ट बनाया, मेथोडोलॉजी बनाई, पूरा फिर स्टडी करने की कोशिश की। अब ये फैक्ट अभी तक रिसर्चर नहीं जानता था कि नर्वस सिस्टम के फ्लोराइड से अफेक्ट होता है। सभी ये मानते थे कि सिर्फ जो मसल्स है और बोन्स है वही अफेक्ट होती। जब पहली बार मैं इस फैक्ट को लोगों के सामने लाया, मैंने पेपर पब्लिश किया, तो एवरीबॉडी वाज सरप्राइज, ऐसे कैसे हो सकता। बट मेरे पास सही डेटा थे और मैंने आई वाज एबल टू प्रूव कि भाई ऐसा होता है, और ये फोटोग्राफ्स हैं, आप देखो इन लोगों को, और ये रिकॉर्डिंग्स हैं उनकी जो इस तरह से बिहेव करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी एक तरीका है एक रिसर्च प्रोजेक्ट को या किसी टॉपिक को डिसाइड। ऐसे बहुत से तरीके हो सकते हैं जिनसे आप कोई रिसर्च टॉपिक को डिसाइड करें। तो सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी सर पर जैसे आपने बात की आपके पास रिकॉर्डिंग्स थी प्रूफ के लिए, सपोर्ट करने के लिए। अब मेरा सब्जेक्ट ऐसा ही है, फिजिकल एजुकेशन है, तो उसमें मुझे तो ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली सब कुछ रिकॉर्ड, तो मैं अपनी थीसिस में उसको प्रेजेंट कैसे करूंगी रिकॉर्डिंग्स को? देखिए उसमें बात यह है कि जैसे पेन ड्राइव के साथ आप उसको लगा सकते हो, कुछ फोटोग्राफ्स लगा सकते हो, और हाँ फोटोग्राफ लगा सकते हो आप, और साथ में एक्चुअली सीडी या डीवीडी आजकल बन जाती है, तो डीवीडी साथ में उसको लगा दें डेटा के साथ, तो जिसको अगर उसको डिटेल देखना होगा डीवीडी निकाल के देख लेगा, सीधी सी बात। आजकल हम ऐसा ही करते हैं क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो डायरेक्टली मतलब रिप्रेजेंट नहीं की जा सकती। हाँ जी। तो जो डेटा है वो आप डीवीडी में डाल दो। भाई जैसे आप किसी की फिल्म बनाई आपने छोटी सी, हाँ है ना, भाई वो ऐसा कर रहा है तो आप उसको डीवीडी में ट्रांसफर कर दो, डीवीडी को उसके साथ लगा दो, उसमें क्या है, वो पॉसिबल है। ठीक है, हाँ जी, थैंक यू। अब एक बात जो सेकंड स्टेप है वो है जो काम आप कर रहे हो उसके लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है आइडियल गाइड ढूंढना। किसी के पास चले जाओ, आजकल एक कॉमन है कि हाँ आ जाओ हम करा देंगे पीएचडी, बट आपको अपना फ्यूचर देखना है। So see the ideal guide who has the information, who has the best lab, who has the equipped lab. इस तरह की सिचुएशन देखना बहुत जरूरी है, तभी आप अपने काम के साथ जस्टिफिकेशन कर पाओगे और एक अच्छा काम कर पाओगे। ठीक है, आपके काम से संबंधित इंफॉर्मेशन कहाँ देख सकते हो? बुक्स में मिल सकती है, ई बुक्स में मिल सकती है, जो आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं जर्नल्स में उसमें मिल सकती है, कई वीडियोस में मिल सकती है, रिसर्च पेपर्स में मिल सकती है, कहीं इमेजेस होती हैं, उनके डेटाबेस होते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती हैं जिनका बारे में जैसे ये HTTPS दिया हुआ होता है ना, और फिर आप एक जैसे स्पोर्ट्स मेडिसिन, तो उसमें स्पोर्ट्स के मेडिसिन से संबंधित सारी चीजें आ जाएगी। तो इस तरह के जो डेटाबेस हैं उन पे मिल सकती है, वेबसाइट्स पे मिल सकती है, और कंप्यूटर में जो लिटरेसी आपका जो चीज आप ढूंढना चाहते हो उसका एक छोटा कोई समरी वर्ड आप उसमें डालें गूगल पे, तो फिर उसकी इंफॉर्मेशन आप खुलती है, फिर आप उसमें देख सकते हो कि भाई मेरे काम की कौन सी चीज है। ठीक है, अब टॉपिक आपने सेलेक्ट कर लिया, गाइड आपने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन उसको फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए आपके सबमिट करने से पहले उसका स्टेटस देखना जरूरी है कि नेशनल स्टेटस और इंटरनेशनल स्टेटस उस रिसर्च का क्या है या उस पर्टिकुलर टॉपिक का क्या है, वो स्टैंड करता है कि नहीं करता। रिसर्च तो हर तरह की होती है, आजकल बहुत रिसर्च हो रही है। मैं आपको एक बात बताऊं कि विदेश में हमारे यहाँ के सिर्फ 3% रिसर्च को, बाकी सब रिसर्च यूनिवर्सिटीज में जमा हो रही है, कोई उठा के नहीं देखता। सिर्फ 3% रिसर्च को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है या नेशनल रिकॉग्निशन है। वजह आप समझ सकते हैं, उसकी वजह क्या है?
अब जो आपने, जैसा मैंने पहले कहा कि अब आपको एक थ्योरी डेवलप करनी है जिसको हम बेसिकली हाइपोथेसिस कहते हैं। नहीं सर, और उसके मैं ये साथ ऐसे, सॉरी टू इंटरप्ट नहीं, यू बोलिए, सर। बोलिए, हाँ कोई जी, बात नहीं। हाँ जी सर, हम मैं ऐसे कैसे करूंगी कि मैं ये टॉपिक ले रही हूँ, अब ये करंटली कैसे स्टेटस में है? कंप्यूटर सर्च, यही That तो, जब कैसे चाहिए? लिटरेचर आप देखो तो उससे पता लगेगा ना आपको, लिटरेचर से ही तो पता लगेगा। सर उसमें आई फिर थी रेटिंग ना थोड़ी होगी सर। मैं भाई, मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर उसमें बहुत लोगों को एरिया बहुत अच्छा लगता है और ये ओके, लगता है ऐसे कि बहुत ठीक अच्छा है, एरिया है, तो उसमें मैक्सिमम पब्लिकेशंस मिलेंगे आपको। ठीक है सर। उसमें बहुत सी किताबें मिलेंगी, उसमें काफी कुछ पब्लिश मिलेगा आपको, ताकि लोग, क्योंकि लोग उसमें काम कर रहे हैं, तो वो एस्टेब्लिश डेटा है या एस्टेब्लिश टॉपिक है, तभी लोग उसमें काम कर रहे हैं, बाकी क्यों करेगा कोई? ठीक है सर, आई थॉट कि कोई साइट है या कुछ है। ओके सर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आप जनरलाइज देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, अंदाज लग जाएगा, हाँ ये एस्टेब्लिश एरिया है, इस पे काम करना अच्छी बात है। या जैसे जब वेबसाइट्स आप देखेंगे किस काम से संबंधित, तो उन वेबसाइट्स में कई बार ऐसा मिलता है कि उसमें जो काम किए रिसर्चर्स हैं उनको अवार्ड्स मिले हैं, उनको रिकॉग्निशन मिला है, उनको फेलोशिप्स मिली है ना? यस सर, फेलोशिप थैंक क्यों मिलती है? जैसे मेरा कोई काम है, जब किसी सोसाइटी को पसंद आता है हाँ और जी, वो समझते हैं कि मैंने एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है, तो वो मेरे को फेलोशिप देकर सम्मानित करते हैं, यस सर, है ना? तो वो एरिया इसका मतलब एस्टेब्लिश्ड है ना। तो आप अगर उस एरिया में देखते हैं कि अच्छा इस तरह के लोगों के रिकॉग्निशन मिल रहे हैं, मतलब वो एरिया एस्टेब्लिश्ड है, उसमें घुसना ज्यादा अच्छा है। यस सर, हालांकि उसमें कंपटीशन भी ज्यादा होता है, बिल्कुल समझ सर। रहे हैं आप? इतना आसान नहीं है उस एरिया में घुसना, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एस्टेब्लिश लोग बैठे हैं। हाँ जी, तो आपको बहुत सोच समझ के उसमें जाना पड़ेगा और स्ट्रॉन्ग थ्योरी हाइपोथेसिस के साथ जाना पड़ेगा, देन यू कैन स्टैंड इन दैट एरिया। ओके, यस फिर सर, बात आती है रिसर्च डिजाइन की। रिसर्च डिजाइन का मतलब यह है कि, इसको मैं सिस्टमेटिकली ऐसे समझा देता हूँ कि टॉपिक आपने तय कर लिया, हाइपोथेसिस आपने तय कर ली, अब आपको तय करना है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे मेरे, और उन ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर मैं कौन सी मेथोडोलॉजी, कौन सी अप्रोच यूज करूं। क्या क्वेश्चन है चल जाएगा, या वीडियो रिकॉर्डिंग चल जाएगी, या लैब में प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, या कुछ और इस तरह, या एनिमल्स पे करना पड़ेगा, या प्लांट्स पे करना पड़ेगा, या प्लांट के एक पार्ट पे करना पड़ेगा। ये सब चीजें आपको डिस्कस करके तय करनी होती हैं। दैट इज बेसिकली द डिजाइन ऑफ अ रिसर्च। मेरे को कितने, अगर एनिमल यूज आप कर रहे हैं तो कितने एनिमल यूज करने हैं, क्योंकि बेसिकली देखिए जो डेटा होता है वो वैसे तो नॉर्मली 10 एनिमल्स का डेटा किसी लेवल तक क्रेडिबल माना जाता है, लेकिन अब आजकल इतने एनिमल मिलते नहीं है। तो अब ये कर दिया है कि पहले बीच में आया था कि 6 एनिमल्स, तो वो भी क्रेडिबल है। अब इन्होंने मिनिमम 3 एनिमल्स कर दिया है, लेकिन फिर भी जो बड़े जर्नल्स हैं, जो बहुत एस्टेब्लिश जर्नल्स हैं, इंटरनेशनल जर्नल्स हैं, वो आज भी 10 एनिमल्स, समझ गए? आपको यहाँ एक चीज समझ नहीं, हालांकि टाइम ज्यादा लग रहा है, बट फिर भी बता दूं कि सबसे बड़ी बात क्या, चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, चाहे प्लांट हो, अगर जैसे मेरे अंदर कोई चीज इंजेक्ट करते हैं ए, और वही चीज आपके अंदर इंजेक्ट करते हैं, हमारी दोनों की बॉडी का रेस्पॉन्स अलग होगा। ओके, तो जो 10 एनिमल है उन 10 का रेस्पॉन्स अलग होगा, कोई जरूर नहीं है सेम हो। हाँ, ये हो सकता है उसमें से 2 या 3 का रेस्पॉन्स सही हो या आसपास हो, बाकी का अलग होगा। तो ये बहुत सोचने की जरूरत है कि ये जो 10 एनिमल हमने लिए हैं, इसमें आगे आने वाले टाइम में, मतलब कम से कम 3 या 4 का डेटा अगर क्लोज आएगा तो उसमें एरर कम मानी जाएगी, लेकिन अगर उसमें डिफरेंस आएगा तो वो एरर मानी जाएगी। तो इसलिए जितने कम एनिमल होंगे तो डेटा में एरर ज्यादा होगी। तो इसलिए बेसिकली ये माना जाता है कि जो डिजाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके जो सीनियर्स हैं उनसे पूछ के, बात करके, अपने गाइड से बात करके और बैठ के समझ के पूरी रिसर्च डिजाइन बननी चाहिए, ताकि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, और फिर बाद में बात आती है कि डेटा का रिकॉर्ड कैसे करना है, फिर उनको एनालाइज कैसे करना है, माइक्रोस्कोप के नीचे करना है, या वैसे पेपर वर्क करके एनालाइज करना है, या कोई और तरीके से एनालाइज, कोई जैसे फार्मूला होते हैं उनसे एनालाइज करना। सो देयर इज अ वे हाउ टू डू इट, देन यू हैव टू अप्लाई द स्टैटिस्टिक्स। और जो रिजल्ट आपके पास आ रहे हैं उनको बेसिकली आपको इंटरप्रिटेशन करना है। सपोज जो रिसर्च मैंने की है, जैसे ए इंजेक्ट किया है,
और उसका जो रिएक्शन मेरे में आया और आप में आया, आपने दोनों डेटा को ले लिया, जैसे मेरे चक्कर आ रहे थे, आप नहीं आ रहे थे, मेरा टेम्परेचर बढ़ा, आप नहीं बढ़ा, कितने डेटा मेरा क्यों बढ़ा या मेरे को क्यों आ रहे थे, उसके पीछे रिजल्ट क्या हो सकते हैं, तो आपको बताएंगे ये रिजल्ट हो सकता है, इस वजह से आ रहे थे मेरे को नहीं आ रहे थे, इनका बॉडी का टेम्परेचर इसलिए बढ़ा था, ये वजह होती है। दिस इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। ओके, इन इंटरप्रिटेशन को सही तरीके से लिखना और फिर उसके बाद जो डेटा आपके हैं उनको फोटोग्राफ्स के रूप में प्रेजेंट करना। जैसे मेरे पर स्टडी की है, आपने की है, हम दोनों उसके सैंपल हैं, तो हमारे फोटो लगने के भाई दोनों का हमने स्टडी की थी। हालांकि हमारे तो आदमी कम लगाते हैं बेसिकली एनिमल्स के उनके, ताकि मेरे को पता लगे ये कौन सा एनिमल पर काम किया था। अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं जो रिसर्च के काम में आते हैं, उसमें भी ये आप जिस तरह का काम करना, जैसे इम्यूनोलॉजी का काम जो लोग करते हैं वो रेट पे नहीं करते हैं ज्यादातर, वो एक दूसरा एनिमल होता है उसको कहते हैं सी बॉल माउस, काले रंग का चूहा होता है छोटा सा, वो लैब में डेवलप किए गए हैं, उनके ऊपर होता है। अगर आपने जैसे सफेद चूहे पे कर दिया या आपने जो घरेलू काले चूहों पे कर दिया तो कोई उस डेटा को मानेगा नहीं, क्योंकि उस पर रिजल्ट ही नहीं आते उस तरह के, आपने तो काम कर दिया है ना। तो ये चीजें बहुत सोच समझ के होती हैं। और फिर ये देखने की जरूरत है कि जो कुछ आप लिख रहे हो वो आप इस तरह से लिखोगे कि प्लेगरिज्म ना हो। प्लेगरिज्म का मतलब यह है कि किसी और के काम पे आपकी कॉपी नहीं होनी चाहिए, मिलना नहीं चाहिए। ओके, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने ये सेंटेंसेस वहां से उठा के आपके बना दी। और लास्टली, selection of an appropriate journal to publish your paper, that is also important. असेसमेंट क्राइटेरिया, अब अपन आ रहे हैं उस पर धीरे धीरे, क्या क्या हो सकते हैं असेसमेंट के क्राइटेरिया कि जो काम आपने किया है उसको असेस कैसे करें। इज द प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग टू वर्क विथ एंड टू द रिसर्चर, आपको और दूसरे रिसर्चर्स को क्या जो प्रॉब्लम आपने सेलेक्ट किया वो पसंद आएगी। इज द प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड विल बी सॉल्व बाय द रिसर्च, क्या जो प्रॉब्लम आपने सेलेक्ट किए हैं वो जो मेथड आप यूज कर रहे हैं उससे आप उसको असेस कर पाओगे, एनालाइज कर पाओगे, उसके रिजल्ट्स निकाल पाओगे। विल इट बी सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट स्टेटस, उस रिसर्च में आज का जो स्टेटस है, आज जो रिसर्च, आज तक जो रिसर्च हुई है उस स्टेटस के हिसाब से जो डेटा आप जनरेट कर रहे हो या नए डेटा इकट्ठे कर रहे हो, उन डेटा की कोई इंपॉर्टेंस है या उनसे कोई लिंक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड कैन इट बी कंप्लीटेड इन द रिक्वायर्ड टाइम फ्रेम, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम जैसे कि 2 साल का या 3 साल का जो है उसके अंदर आप इस मेथोडोलॉजी को, इस एनालिसिस को, इन सबको कराओगे, डेटा इकट्ठा कराओगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुछ आप कर रहे हो उसके लिए जैसे कई ऐसी प्रॉब्लम्स होती है ना जो मेडिकल साइंस से रिलेटेड हैं, या जैसे एनिमल्स के लिए आजकल ये हो गया है कि जब तक आपकी लैब रिकॉग्नाइज ना हो और आपकी लैब को अथॉरिटी नहीं दे रखी हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है CPCSA, वो एक्चुअली अथॉरिटी देता है कि आप इतने एनिमल्स आपकी लैब रख सकते हो, उसके बिना आप एनिमल्स रख ही नहीं सकते और आप यूज भी नहीं कर सकते। अगर आपने एनिमल रखे हैं तो आपके ऊपर केस भी हो सकता है। अगर आप वो सोसाइटी आपके लैब को रिकॉग्नाइज करके, आपके प्रोजेक्ट को रिकॉग्नाइज करके आपका एक नंबर, कोड नंबर, वो कोड नंबर आपको अपने पेपर में, अपने थीसिस में देना पड़ता है। योर एग्जामिनर विल आस्क यू कि क्या आपने परमिशन ली थी, अगर परमिशन है तो कहाँ है या उसका कोड नंबर कहाँ है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। या ह्यूमन बीइंग पे अगर आप काम कर रहे हो तो मेडिकल कॉलेजेस में और इंस्टीट्यूशंस में वहां पर एक ह्यूमन एथिकल कमेटी होती है कई सीनियर प्रोसेस की, वो आपके प्रोजेक्ट को देखती है, उसको पढ़ती है, फिर उसको तय करती है कि इस काम को करने देना है या नहीं करने देना है, क्योंकि आप चूंकि पेशेंट्स काम में लोगे तो पेशेंट्स को कोई नुकसान भी पहुंच सकता है। यू आर नॉट अलाउड टू टच द पेशेंट्स। तो आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि ऐसा ना हो कि कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए और आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो जाए। तो उसके लिए फिर वो ह्यूमन एथिकल कमेटी जारी करती है कि हाँ भाई एक रेट में आप ये काम कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द बेसिक वे ऑफ असेसमेंट ऑफ क्राइटेरिया। A research is considered valid if it is accepted by all researchers working on similar aspects or in a related area. उससे संबंधित एरिया में और उसी एरिया में जो रिसर्च हैं उनको आपका रिसर्च या आपके जो डेटा हैं वो एक्सेप्टेड और होने चाहिए। दूसरा,
जो आपकी हाइपोथेसिस आपने बताई है, वो हाइपोथेसिस हमेशा कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस फ्रेम करके बनाई जाती है। पहले आप जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है उस पर कुछ क्वेश्चंस बनाइए, तो ये क्वेश्चन खड़े हो सकते हैं, जिसको कि मैंने गैप ऑफ रिसर्च कहा था। तो वो क्वेश्चंस के बेसिस पर ताकि उसका एक बैकग्राउंड रहे। ठीक है। तीसरा, डेटा कलेक्टेड बाय यूजिंग प्रॉपर मेथड्स। जैसे मैं सपोज ले लेता हूँ, वो फ्लेवोनाइड्स की बात की थी मैंने कि प्लांट के अंदर फ्लेवोनाइड्स होते हैं जो कि हमारे अंदर जो टॉक्सिक प्रोड्यूस होता है उसको खत्म करता है। अब मेरे को क्या चाहिए इसमें मेथड में? पहला तो चाहिए वो प्लांट चाहिए और शुद्ध प्लांट चाहिए। वो कोई ऐसी जगह से नहीं होना चाहिए जिसमें बैक्टीरिया वायरस पता नहीं कुछ और हो, कोई केमिकल हो, क्योंकि प्लांट तो पानी से लेता है नीचे से जमीन से, तो उसके साथ भी उसमें आ सकता है। तो हमको पहले तो ये देखना है प्लांट बिल्कुल सही जगह से लिया गया। एक बात, मेरे को उसमें पत्ती लेनी है, स्टेम लेना है या जड़ लेनी है, ये मेरे को सोचना है। उसके बाद उनको सुखाना है। उसके बाद उसके अंदर जो केमिकल है, जो फ्लेवर से बाहर निकालना है। उसके लिए एक प्रॉपर मेथड है। ऐसे कहते हैं कि उनको शेड ड्राई करना पड़ता है, या एक मशीन के अंदर ड्राई करना पड़ता है। अगर आप शेड ड्राई करेंगे तो हो सकता है कि वो उसका कंटेंट पूरा रहे। अगर आप मशीन के अंदर ड्राई करेंगे तो हो सकता है कि उसका जो ऑलरेडी कंटेंट वो आधा हो जाए, तो आपको आधा फ्लेवोनॉइड ही मिलेगा, मात्रा फ्लेवोनॉइड मिलेगा। ओके। इसी तरह से उसको मैं जैसे एनिमल में टेस्ट करना चाहता हूँ, ह्यूमन बीइंग में करूंगा नहीं, एनिमल में करना चाहता हूँ, तो कौन सा एनिमल काम में लूंगा? जैसे मैंने कहा कि बहुत से एनिमल काम में आते हैं। फिर उस एनिमल को मैं खिलाऊंगा या उसको इंजेक्ट करूंगा इंजेक्शन से, या इंट्रावेनस जो ग्लूकोज देते हैं उस तरह से उसको डालूंगा। कई तरीके हैं, वो हमको तय करना पड़ेगा, मैं इस तरह से सेट करूंगा। ठीक है। और फिर जब मैंने फ्लेवोनॉइड को बॉडी में डाल दिया, तो उसके बाद जो चेंजेस बॉडी के अंदर आए, अब क्वेश्चन है वो टॉक्सिन कहाँ कहाँ है, तो मेरे को ये सोचना पड़ेगा। जैसे मैं अगर अपनी रिसर्च को लिवर पे, यकृत जिसको कहते हैं, उस पर कंसंट्रेट करना चाहता हूँ, तो लिवर का पीस चाहिएगा मेरे को, ब्लड चाहिएगा मेरे को, क्योंकि यकृत जो अपना सब है वो सब छोड़ता है ना। तो टॉक्सिन जो जा रहा है वो ब्लड में जा रहा है। अब वहां टॉक्सिन अगर, क्योंकि ब्लड को मेरे को मेजर करना पड़ेगा कि फ्लेवोनॉइड देने के बाद टॉक्सिन की मात्रा उसमें कम हुई क्या, या उससे पहले उसकी मात्रा कितनी थी, उसके बाद कितने समय के बाद उसकी मात्रा कम हो गई टॉक्सिन की। तो ये सब चीजें हमको एक एप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी को तय करके और हमको तय करना होगा, तभी रिसर्च की वैलिडिटी रहेगी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है वो सिर्फ साइंस के लोगों के लिए, वो साइंस के लोगों के लिए ये है कि आपने डेटा जनरेट कर लिए, आपके पास एक टेबल बन गई कि भाई टॉक्सिसिटी आज की तारीख में ये थी, 4 दिन बाद ये थी, 6 दिन बाद ये थी, 8 दिन बाद ये थी, 10 दिन बाद ये थी। ठीक है। फ्लोराइड देने के बाद ये थी और उसके पहले ये थी। आपने तो इसको पूरे को देखा है, लेकिन इसको इंटरप्रेट करने से पहले या इसको समझने से पहले आप किसी अपने ऐसे साथी को दीजिए जो इस रिसर्च के बारे में नहीं जानता। आपके सब्जेक्ट का वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो उसको सही ढंग से पूछ सकेगा। लेकिन ऐसे आदमी को जो आपके रिसर्च के बारे में नहीं जानता, उसको सिर्फ इतना सा बताना है कि मेरे टॉपिक ऑफ रिसर्च ये है और मैंने इस तरीके से इसको किया है। अब तुम ये देखो मेरे जो डेटा है वो सही है क्या, और इनको एनालाइज करके देखो। तो अगर वो उनको सही ढंग से एनालाइज करता है तो आपके रिसर्च में आप लिख सकते हो कि यह माय डेटा वर एनालाइज्ड बाय ए ब्लाइंड रिसर्चर। ब्लाइंड मींस जिसको उस कंसेप्ट के बारे में पता नहीं है। इस तरह के डेटा ज्यादा वैलिड होते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमको जब चीज पता होती है तो कई बार हम क्या बायस हो जाते हैं और डेटा को दूसरे तरीके से इंटरप्रेट होना क्या चाहिए और डेटा इंटरप्रेट कर देते हैं अपने फेवर में। हमारे दिमाग में जो थिंकिंग चल रही होती है हम उससे इंटरप्रेट करते हैं। तो इसलिए आप तो खुद करें, लेकिन एक ब्लाइंड रिसर्च से करवाएं वापस, ताकि आपको एक फर्क महसूस हो सके कि आपने क्या किया और एक्चुअल क्या हुआ। ओके। जो डेटा आपके पास आए हैं वो आपकी थीसिस को सपोर्ट चाहिए। अगर वो आपकी थीसिस को सपोर्ट नहीं करते हैं तो आप मेथोडोलॉजी यूज करके उसे देखिए, और अगर वापस वही चीज आती है देन यू कैन से दैट डेटा नॉट माय हाइपोथेसिस, और ये जो रिजल्ट है ये बिल्कुल टोटली अलग कंसेप्ट को जनरेट करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उनको वापस टेस्ट करना जरूरी है। एक ही बार की स्टडी से आप ये कंफर्म नहीं कर सकते कि जो डेटा आपने पाए हैं वो डेटा पूरी तरह से ठीक है। अगर आप उनको
अब बेसिकली साइंस में हमेशा 3 बार किया जाता है प्रूव को। जब तीसरी बार में करीब करीब बराबर डेटा आता है तो माना जाता है कि जो काम हम कर रहे हैं ये बिल्कुल सही काम। और फिर जैसा मैं बराबर कह रहा हूँ कि प्रॉपर अप्लाई करना होता है। ठीक है, अब इसके बहुत से प्रिंसिपल्स हैं, उनके डिटेल में नहीं जाते हैं। हम जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। 4 तरह की बेसिकली वैलिडिटी है। कुछ पूछना है क्या? हेलो, 4 तरह की वैलिडिटी होती है। माइक में माइक मेरा तो चल रहा है, फिर प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, ये बोल रही थी किसी का माइक अनम्यूट हो गया था। अच्छा, तो क्या चाहते हैं वापस? अच्छा, अनम्यूट हो गया, ओके कोई बात नहीं। तो मैं अब आगे बात करता हूँ टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। बेसिकली 4 तरह की होती है, कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरियन वैलिडिटी और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी और फेस वैलिडिटी। अब ये बेसिकली है क्या? कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी पहला जो है कंटेंट वैलिडिटी, हालांकि जो पहले मैंने बात की वही है, बेसिकली सिंपल तरीके से इसको कि आपने जो कुछ डिजाइन बनाया है या प्रोजेक्ट बनाया है वो बिल्कुल हर महीने में सही है, वो आपको थोड़ा सा समझना है या उसको सही तरीके से टेस्ट किया जा सके, ये हमको समझना है। इसको कंटेंट वैलिडिटी। जो क्राइटेरिया बेसिकली ये है कि अगर आप किसी चीज को मेजर कर रहे हैं, जैसे मैं अभी किसी बीमारी के बारे में बात कर रहा था, जैसे अल्जाइमर डिजीज है, या टॉक्सिन्स के बारे में बात कर रहा था कि मैं एक फ्लेवोनॉइड काम में ले रहा हूँ, तो मेरे को ये पता होना चाहिए उसके बारे में, केमिकल के बारे में, खासतौर से फ्लेवोनॉइड के बारे में, जो मैंने उसमें से प्लांट में से निकाला है, कि वो जिसको मैं यूज कर रहा हूँ और जिस डोज में मैं दे रहा हूँ वो आदमी को, जिसको भी मैं दूंगा, उसको नुकसान ना पहुंचाए। दैट इज बेसिकली क्राइटेरियन वैलिडिटी। मैं किस तरह से उसको दूंगा, किस डोज में दूंगा और किस में डिजोल्व करके दूंगा, तो डायरेक्ट तो इसमें डिजोल्व करके आप दोगे, तो ऐसा नहीं हो। उसको व्हीकल कहते हैं जिसके साथ वो केमिकल जाता है। तो वो व्हीकल जो है वो कई बार या तो छोटा अल्कोहल होता है, या एक आइसोप्रोपेनॉल एक केमिकल है उसको कहते हैं, वो होता है, या जैसे सेलाइन होता है, नमक का पानी इसको कहते हैं, 0.9% सेलाइन होता है, उसके अंदर घोल के देते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं ये हमको पता होना चाहिए कि आदमी को, जैसे जिसको बीपी होगा, अगर उसको आप सेलाइन चढ़ा दोगे पूरी बॉटल तो उसका बीपी बढ़ जाएगा। तो ये सब चीजें हैं, दिस इज नोन एज अ क्राइटेरियन वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का बेसिकली मतलब ये है कि जो कुछ आप कर रहे हो तो आपके पास एप्रोप्रिएट मेजर्स हैं। अगर कोई बात गलत हो रही है तो उसको वापस कंट्रोल करना है। ओके, इसको बेसिकली कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कि बेसिकली जैसे फेस पे अपन देख के नहीं कहते कि ये आदमी बहुत अच्छा है और ये आदमी बहुत खराब है, या आदमी बहुत बोलता है या बिल्कुल नहीं बोलता है या उदास रहता है। ये जो इस तरह की रीडिंग है ये बेसिकली फेस वैलिडिटी के नाम से कहलाई जाती है। बट वैसे जो साइंस के लोग हैं उनके लिए ये वैलिडिटी वैसे नहीं है। अब यहाँ पर आपको जो सबसे बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमेशा जो आप रिसर्च करें, चाहे किसी में करें, 3 R's आर मोर इम्पोर्टेंट। और उसके बाद एक वर्ड है, पहला है रिप्रोड्यूसिबिलिटी, तो मैंने कई बार आपको एक्सप्लेन किया। रिलायबिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। आपके जो डेटा है वो पूरे रिलायबल होने चाहिए। आदमी आप पर विश्वास करना चाहिए कि आपने आपका जो गाइड है जिसके साथ आप काम कर रहे हैं उसको आपकी रिलायबिलिटी होनी चाहिए कि आप जो डेटा जनरेट कर रहे हो वो आप सही तरीके से करोगे। आप जो डेटा एकत्रित कर रहे हो उसको इंटरप्रेट कर रहे हो वो आप सही तरीके से करोगे। आप एक कैपेबिलिटी है कि आप उसको सही तरह से कर पाओगे। जो डेटा आपने बनाए हैं, जो रिप्रेजेंटेशन किया है, वो आपने अप्रोप्रिएटली पूरा सही तरीके से किया है, उसमें कहीं हेर फेर नहीं किया है। कई बार ऐसा होता है कि रिजल्ट थोड़ा सा गड़बड़ होता है, तो जैसे वहां लिखा 0.5 और आपका सही रिजल्ट 0.1 करने से तो आ रहा है, तो आपने तो 0.1 कर दिया, कौन देख रहा है उसको? तो ये जो चीज है ये नहीं होनी चाहिए। दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज रिलायबिलिटी।
और फिर बात आती है रिपोर्टेबिलिटी। जब आप रिपोर्ट करते हैं तो सही तरीके से आप रिपोर्ट करते हैं कि आपके डेटा को दूसरा जो आदमी रिसर्चर है उसको सही तरीके से यूज करते हैं। ये 3 आर रिसर्च में सबसे इम्पोर्टेंट है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड रिपोर्टेबिलिटी। और फिर एक एथिक्स है। एथिक्स से मतलब वापस बात आती है, जैसा मैंने रिलायबिलिटी में कहा कि आपको हर जगह सच्चा रहना है। नो मैटर आपको लगता है कि ये रिजल्ट किस तरफ जा रहे हैं, इट डजंट मैटर। ओके, डेटा को चेंज करना, जो डेटा बेसिकली जनरेट हुए हैं उनको चेंज करना, ये सबसे गलत बात है, क्योंकि आप पूरी थीसिस को या पूरी थ्योरी को बदल डाल रहे हैं। तो जो कुछ आपने अपने एक्सपेरिमेंट से और उससे, अब ये हो सकता है कि स्टूडेंट्स को कहीं आपसे प्रॉब्लम हुई हो और वो कोई उसको पकड़ ले, जैसे मैंने आपसे कहा पकड़ ले उस चीज, यहाँ आपसे मिस्टेक हुई, इसको वापस रिपीट कर लो। तो द पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट के भी, बट गलत चीज करना, डेटा चेंज करना, उनको गलत तरीके से लिखना, बदल देना, इंटरप्रेट करना, रिप्रेजेंट करना, दैट इज बेसिकली पार्ट ऑफ। या किसी और के डेटा, जैसे एक रिसर्च में जैसे इंटरव्यू में गया था गुजरात में, एक साहब प्रोफेसर के इंटरव्यू के लिए आए थे और उनके रिसर्च से मैं वाकिफ था, मैं कहीं उनके रिसर्च पेपर देखता था। तो जब उनका पेपर, मैंने कहा भाई आपके पेपर दीजिए, उनका एक पेपर देखा तो मैंने कहा भाई ये जो टेबल आपने यहाँ लगाई है, टेबल तो मैंने पहले देख रखी है। तो उसने कहा नहीं सर ये मेरी टेबल। मैंने कहा नहीं आपकी नहीं है, ये टेबल फलाने आदमी की है, एक प्रोफेसर पीपी सूद है उनकी है। तो वो एकदम घबरा गए, अरे नहीं नहीं सर ऐसा। मैंने कहा नहीं है, प्रोफेसर पीपी सूद की। मैंने किसी से कहा कि आप कंप्यूटर मंगाइए सर, मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ वाईफाई से। तो मैंने इमीडिएटली प्रोफेसर सूद का पेपर निकाला कंप्यूटर पे और मैंने बताया देखो ये दोनों टेबल सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं। तो फिर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड। कहाँ से? मैंने तो ये टेबल उधर से उठा के इधर लगा ली थी। तब ऐसी रिसर्च करता है। ओके, so this is known as research. मेथड ऑफ वैलिडेशन क्या है? वही वापस वही बातें आती है जो मैंने अभी तक आपसे कही। मेथड्स वही है, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, कैसे सेलेक्ट करें वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर हाइपोथेसिस, ये भी मेथड है। सिलेक्शन ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये भी पर्टिकुलर मेथड है। कंडक्शन ऑफ रिसर्च, रिसर्च आप कैसे करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। मैं तो हमेशा हर एक्सपेरिमेंट को 2 बार 3 बार रिपीट करता था ताकि ये देखने के लिए कि भाई बराबर डेटा सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर तीसरी बार डेटा बदल गए तो फिर चौथी बार हालांकि उसमें टाइम होगा, बट एक ऑथेंटिक रिसर्च करने के लिए आपको करना जरूरी है। डेटा कलेक्शन, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स, फोटोग्राफ, बार चार्ट्स एक्सेट्रा, स्टैटिकल मेथड्स और जनरल सिलेक्शन। वापस जो वैल्यूडेशन है वो इन लेवल पर काम करता है। सो मैं इसके बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। किसी भी रिसर्च की जो वैलिडिटी है उसको डिटरमाइन करने के लिए या उसकी क्रेडिबिलिटी को डिटरमाइन करने के ये क्राइटेरिया है। जब मैं आपकी रिसर्च को देखूं, किसी की रिसर्च को, तो मैं इस क्राइटेरिया से उसको देखूंगा। पहला, व्हाई द स्टडी वाज अंडरटेकन। मैं कई बार जब वाइवा के लिए जाता हूं तो पहले ही क्वेश्चन पूछता हूं कि भाई आपने इस एरिया में रिसर्च करने की कोशिश क्यों की। जैसे सपोज कोई किसी एनिमल पे काम कर रहा है, मैं तो पैंथर पे काम कर रहा हूँ, पैंथर के बिहेवियर पे, तो पहले मैं पूछूंगा कि आपने पैंथर क्यों सेलेक्ट किया। बहुत से लोगों ने काम किया उस पर, पैंथर आपने क्यों सेलेक्ट किया। तो उसके पास ये जवाब होना चाहिए कि एक तो ये साहब मेरे एरिया में जो पैंथर है मतलब उनकी तादाद ज्यादा है या उनके बिहेवियर पर अभी तक कोई स्टडी नहीं हुई है, क्योंकि वहाँ का एनवायरमेंट अलग होगा, वहाँ टेम्परेचर अलग होगा, वहाँ का जंगल अलग तरह का होगा, वहाँ जो फूड अवेलेबिलिटी है वो अलग तरह की होगी। ये जवाब उसका होना चाहिए, इसलिए मैंने इस को सिलेक्ट किया। ठीक है, सो व्हाई द स्टडी वाज अंडरटेकन इज वन ऑफ द क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई द वैलिडिटी और द क्रेडिबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर रिसर्च। दूसरा, स्टडी किसने कंडक्ट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वही स्टडी वही आदमी कंडक्ट करना चाहिए जिसको बेसिक बैकग्राउंड। और जैसे पैंथर की बात मैंने की तो उसको ये डेटा जरूर होना चाहिए तो भाई जबलपुर में अगर पैंथर पे काम हुआ है तो उन्होंने क्या रिपोर्ट किया है, कैसे उसकी स्टडी की है, या उदयपुर में काम किया है तो कैसे उनकी स्टडी की है, वहाँ का जो एनवायरमेंट था वो किस तरह का था, इसलिए उनके डेटा है। जबलपुर में एनवायरमेंट किस तरह का है, मैंने प्लॉट खरीद लिया अपनी कंपनी से, मेरी कंपनी अच्छा जैसे मैंने खरीदा है मेरा, तो वो आप भाई ये क्या हो रहा है। आप सही कह रहे हो, मेरा प्लॉट की रेट अपन
भाई ये क्या हो रहा है? हैं? आप रिसर्च सुन रहे हो या कुछ और सुन रहे हो? हैं? प्लॉट के रेट लगा रहे हैं यहाँ पर? सर What ये is this लोग going कुछ on? बीच में ना पीपल आर न्यूसेंस क्रिएट करते रहते हैं। नहीं ठीक है, बट ये तो गलत है ना ये। चलिए, अब दूसरा एक और सबसे बड़ी बात आती है, तीसरा जो क्राइटेरिया आता है वो आता है हु फंडेड द रिसर्च। आपकी फंड, रिसर्च फंड कहाँ से आए? देखिए, आपकी बहुत अच्छी रिसर्च होगी तो यूजीसी आपको फंड करेगी, और अच्छी होगी तो सीएसआर करेगा साइंस में, और अच्छी होगी तो आपको आईसीएमआर इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च करेगा। लेकिन अगर बहुत ही बढ़िया अच्छी आपकी होगी तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ से फंड आपको मिल रहा है, वो भी आपकी वैलिडिटी को बढ़ाता है। और जब मैं उसको देखूंगा कि आपकी रिसर्च के लिए फंड कहाँ से मिला है, तो वो मेरे लिए एक आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट होगा कि नहीं, इनको अच्छा फंड मिला है, इसका मतलब कि इनका जो डेटा है या इनका जो रिजल्ट आया है वो सही तरीके से आया होगा। क्योंकि जब पैसा पूरा मिलता है तो काम भी पूरा होता है। ओके, हाउ डेटा वर कलेक्टेड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। आपने सही डेटा जिस तरह से जनरेट होते हैं और फिर लिखे जाते हैं, उससे ही अंदाजा लग जाता है कि डेटा सही तरह से कलेक्ट किए गए या नहीं किए गए। ओके, तो वो डेटा अगर सही ढंग से आपने कलेक्ट किया, फिर हम उसमें देखेंगे मेथोडोलॉजी कि भाई पैंथर को देखना था तो उसके लिए अप्रोच क्या काम में ली, कितने समय तक ऑब्जर्व किया। ऐसा तो नहीं है कि बस एक फोटो लेके बैठ गए और बाकी डेटा आपने बना लिया कि अच्छा भाई ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है। अगर उसमें कोई चेंज दिखता है तो मेरे को उस समय का वीडियो या उसमें का फोटो चाहिए ही चाहिए, सो दैट आई कैन वेरीफाई कि आपने जो लिखा है वो उसमें दिखता है और आई कैन इंटरप्रेट इट, हाँ ऐसा है। ओके, इज द सैंपल साइज एंड रेस्पॉन्स रेट सफिशिएंट? एक पैंथर पे तो काम करने से काम नहीं चलेगा, तो आपको कई पैंथर्स का डेटा लेना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये है कि अब आप ये कैसे तय करोगे कि आप जिस पैंथर का डेटा ले रहे हो वो सेम पैंथर नहीं है, वो अलग अलग पैंथर है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक ही पैंथर उस एरिया में आ रहा है, तो वो आपने एक का ले लिया, फिर हो सकता है दूसरे दिन भी वापस वही आ गया, फिर आपने उसी का डेटा ले लिया, फिर तीसरे दिन भी वही आ गया। तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि मैं सेम का डेटा ले रहा हूँ, फिर जो वाइट डेटा है वो कैसे जनरेट हो गया, या जो डिफरेंस है उनके बिहेवियर में वो कैसे जनरेट होगा। इस तरह की चीजें आपको देखनी होती हैं। तो इसको हम सैंपल साइज कहते हैं। जैसे 4 एनिमल, 10 एनिमल, 15 एनिमल, 20 एनिमल, इस तरह से। ओके, ये सैंपल साइज कहलाती है। डज द रिसर्च मेक यूज ऑफ सेकेंडरी डेटा? सेकेंडरी डेटा से मतलब ये है कि प्राइमरी डेटा तो आप बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं, वो प्राइमरी डेटा है, लेकिन बिहेवियर के साथ मैंने जैसे कहा फैक्टर्स, गर्मी, ह्यूमिडिटी, है ना, पानी की अवेलेबिलिटी, फूड की अवेलेबिलिटी, आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, उस एरिया में दूसरे एनिमल्स कैसे हैं जो उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं उस एनिमल के साथ, ये सब सेकेंडरी डेटा खिलाएंगे और बेसिकली आपकी जो स्टडी है उसको अफेक्ट करेंगे, है ना। तो इसलिए क्या आपकी जो रिसर्च है, जो आपकी स्टडी है, उसमें सेकेंडरी डेटा का यूज हुआ है या सिर्फ प्राइमरी डेटा आपने इंटरप्रेट किए हैं या प्राइमरी डेटा को ही कलेक्ट किया है, ये आपको पता होना चाहिए। डज रिसर्च मेजर व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर? क्या लास्ट में जब आप कर लें, इंटरप्रिटेशन कर लें, बना लें, डेटा लिख लें, तब आपको इस चीज को सोचना है कि मैंने जो इनिशियल सोचा था अपने हाइपोथेसिस में, क्या वो डेटा उस बात को बता रहा है या नहीं बता रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कई बार जब आप प्राइमरी डेटा पर काम करते हो, तो क्या ये प्राइमरी डेटा जनरलाइज किए जा सकते हैं? जनरलाइज से मतलब ये है कि और दूसरे एरिया में जब अंतर होंगे, क्या उनके बारे में भी उसी तरह सोचा जा सकता है? ये अब आपको समझना है। ओके, तो ये जो 8 तरीके हैं जिनके बेसिस पर किसी रिसर्च की वैलिडिटी तय की जा सकती है। रिसर्च में लिमिटेशंस बहुत हैं। जैसे पहला लिमिटेशन तो वही है कि टॉपिक कंसेप्चुअली क्लियर होना चाहिए, टॉपिक में किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा, जब आप कोई काम करते हैं
या कोई टॉपिक तय करते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि उस पर एक छोटी सी स्टडी पहले कर लें, ताकि आपको पता लग जाए कि ये रिसर्च करने लायक है ये टॉपिक। तो छोटी सी डेटा कलेक्शन कर लें उस पर, और उस कलेक्शन से आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि हाँ, इसमें मैं लंबे समय तक इसको 3 साल तक स्टडी कर सकता हूँ, और इसमें बाद में भी इसकी स्टडी हो सकती है। ये एक बहुत बड़ी, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये एक लिमिटेशन है कि आपकी रिसर्च आगे जाके कहाँ तक जाएगी। ओके, द रिसर्चर इज नॉट फुली इक्विप्ड। आपने काम तो ले लिया फ्लेवोनॉइड को टेस्ट करने का, और आपकी लैब में उसको टेस्ट करने के लिए मेथोडोलॉजी के जो इक्विपमेंट्स हैं, जैसे एक फोटोमीटर कहते हैं, वही नहीं है, तो फिर कैसे करोगे? तो वो इक्विपमेंट्स आपके लैब में हैं या नहीं है, ये भी आपको देखना जरूरी है। रिसर्चर्स ने पुराने डेटा कलेक्ट ही नहीं किए, सीधा एक थीसिस पे, जैसे गाइड ने, जो कई बार मैं रिसर्च से पूछता हूँ, वो कहते हैं सर गाइड ने सजेस्ट की थी प्रॉब्लम। तो भाई गाइड ने सजेस्ट की थी, आपका भी तो कोई इंटरेस्ट होना चाहिए ना, गाइड ने क्या सजेस्ट किया उसमें। लेकिन गाइड ने भी सजेस्ट किया, तो उसके अंदर आप कुछ पढ़ के लिख के आप ये तो बता सकते हो सर आपने, तो वो भी एक लिमिटेशन है एक तरह की। और लिटरेचर आपके पास नहीं है, अवेलेबल नहीं है, या आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, जैसे वाईफाई कई जगह नहीं होता है, या लाइब्रेरी नहीं होती है, फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे। द रिसर्चर हैज नॉट डेवलप्ड अ हाइपोथेसिस टू प्रूव। कई बार यह है कि लोगों को पता ही नहीं होता है बना लिया, तो सीधा ही रिसर्च करके यार अपना काम कर लिया, और 2000 रुपए देके या 6000 रुपए देके पेपर पब्लिश करा लिया, सब ठीक है, वो 6000 रुपए पेपर कर रहा है, और तो कोई उसको देखने वाला है नहीं, वो नहीं पढ़ा है वो पेपर, और उसके कोई पढ़ा नहीं है उस पेपर। और रिसर्च में जो कुछ रिसर्च हो रही है, चाहे वो किसी तरह की, रिसर्चर स्किल होना जरूरी है, उसके अंदर इस तरह का दिमाग होना चाहिए, एनालिटिकल माइंड जरूर होना चाहिए, तभी वो आदमी सही रिसर्च को कर सकता है। और ये भी एक बहुत बड़ी, हर आदमी पीएचडी डिग्री चाहता है, डॉक्टर लिखना चाहता है, बट मैं हमेशा, अगर आपको उसमें रिसर्च में इंटरेस्ट हो, आप उसको कर सकते हो, आपको पूरी समझ है, पूरा टाइम दे सकते हो, तो फिर आप उस रिसर्च को करें, वरना उस एरिया में जाने की कोई जरूरत नहीं, उस डॉक्टर। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। Sir, I would like to ask questions. हाँ, अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बोलिए। Sir, sir, as you are very much known to the biological field, even neuro, है ना? तो sir, as I told कि मेरा area of research है sports psychology. Being a student of biology till 12th, मुझे बड़ा interesting लगता है biology को attach कर दूं मेरे sports से। तो sir, हाँ जी, तो सर हम देखते हैं कि फुटबॉलर्स, तो उनका मेन डिफॉर्मिटी आता है, उनको बो लेग्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बो लेग्स हो जाते हैं, है ना? तो सर मैं इस पर अगर स्टडी, लेकिन ये हार्म तो कर नहीं रही है, दे विल से, कोचेस विल से कि हमें तो आउटपुट मिल रहा है, बो लेग हो जाए या उनको काइफोसिस हो जाए। तो मेरा अगर ऐसा स्टडी हुआ तो उसको कहाँ तक, मतलब कोई सपोर्ट मिलेगा कुछ? देखो, मैंने इनिशियली आपको एक बात बहुत साफ कह दी थी, कोई भी रिसर्च टॉपिक ऐसा होना चाहिए कि जिसमें कोई प्रॉपर डेटा निकलने की संभावना हो, और उस डेटा को लॉन्ग टर्म चलने की संभावना, उसको वापस उसी तरीके से किया जा सके, और आदमी कोई दूसरा उस रिसर्च को कैरी फॉरवर्ड कर सके। वो रिसर्च अगर आप करके आपके वहीं खत्म हो गई, तो वो फिर रिसर्च नहीं। अच्छा, तो इसके अंदर आपको कुछ ऐसा ढूंढना पड़ेगा कि भाई मैं इसको इस तरह से करूं कि मेरे को एक तो सही डेटा मिले, और ये रिसर्च बाद में भी, जैसे सपोज एक बात बताऊं, इसको आप इस तरह से समझिए। मैंने जब रिसर्च शुरू की थी 1976 में, तो मैंने ब्रेन पर अपना फोकस किया कि मैं ब्रेन से संबंधित काम करूंगा, और उसमें डिफरेंट एरिया, डिफरेंट एंगल्स, अलग अलग टाइम पर मैंने सोचे कि भाई अभी मैं इस पे जैसे ब्रेन की बनावट पे काम कर रहा हूँ। फिर 2-4 साल बाद मैंने सोचा कि अब इसको कोई ऐसी डिजीज पे काम करें, जैसे अल्जाइमर डिजीज पे काम किया मैंने 5-7 साल, कुछ मेरे रिसर्च स्कॉलर्स ने। फिर अल्जाइमर्स को ट्रीटमेंट कैसे करें, उस पर काम किया हमने। फिर हमने कुछ सिंथेटिक दवाइयां ढूंढी कि क्या ये अल्जाइमर्स में यूजफुल हो सकती हैं, उनसे रिसर्च किया हमने। लेकिन बेसिक टॉपिक मेरा क्या रहा? ब्रेन रहा। तो मैं
17 तक जब तक मैं काम करता रहा तब तक ब्रेन ही बेस रहा, बस उसमें अलग अलग जगह हम ढूंढते रहे कि अब इसमें ये हमको ढूंढना है, अब इसमें हमको ये करना है, अब इसमें ये करना है। और अब आज की तारीख में मुझे क्या कहा जाता है, आई एम ए न्यूरो साइंटिस्ट। एक डिसिप्लिन मेरे साथ जोड़ा गया है, ही इज ए वेल नोन न्यूरो साइंटिस्ट। ठीक है, न्यूरो साइंस के नाम से आज पूरी कंट्री में आप कहीं बात करोगे तो मेरा नाम आ जाएगा। तो आपको अभी से अगर इस तरह का फेमस होना है या इस तरह से जाना जाना है देश में या विदेश में, तो आपको इस तरह से बेस बनाना पड़ेगा। सर जैसे हमारे स्पोर्ट्स में क्या होता है ना सर, हम बहुत ही ज्यादा इंडिजीनियस एक्टिविटीज करते हैं, और जैसे ठीक है अपना डिग्री पूरा हो गया, मास्टर्स हो गया स्पोर्ट्स में, उसके बाद जॉब पकड़ लेते हैं। तो लोगों को मैंने देखा, लेकिन हर किसी में नहीं देखा, कुछ प्लेयर्स में देखा उनको ट्रिमरिंग शुरू हो जाता है, उनको न्यूरोलॉजिकल, दे आर टेकिंग मिथाइल कोबालमाइन वगैरह खा रहे हैं, ऐसे भी प्लेयर्स हैं। तो वो क्या एकदम से वो विग्रेस एक्टिविटीज वो बंद कर देते हैं और अपना जॉब, तो उस कारण हो रहा है ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, या क्या है? सही है, आप बोलते रहिए। आप एक्चुअली क्या मेरे एक और चल रहा है साथ में, 2:30 बजे शुरू हुआ है वो। हाँ सर तो प्लीज मुझे थोड़ा सा हेल्प आउट कीजिए कि मैं साइकोलॉजिकल कौन से एस्पेक्ट मेरे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में ऐड करूं, मेरे स्किल परफॉर्मेंस का कुछ टेस्ट होगा सर, स्किल एनहांस करना है मुझे जैसे प्लेयर्स का, तो साइकोलॉजिकली उनका क्या? हाँ जी, मेरी बात सुनिए, अगर आप इसमें मेरे से सजेशन चाहते हैं तो आप मेरी ईमेल लिखिए m.mahib@gmail.com, m.mahib MAHEEP m.mahib MAHEEP @gmail.com। इस पे आप मेरे को थोड़ा सा बैकग्राउंड भेजिए और आप थोड़ा सा कुछ पॉइंट उस पर लिख के भेजिए, सर ये मैं सोचती हूँ, तो उस पे फिर मैं आपको पूरा डिटेल सजेस्ट कर सकूंगा, क्योंकि मेरे को भी सोचना पड़ेगा कि मैं क्या सजेस्ट करूँ। आप एकदम राइट पर्सन सर, आपका न्यूरोलॉजिकल वाला सजेस्ट कर दूंगा मैं आपको 10 दिन में सजेस्ट कर दूंगा, बट आप मेरे को थोड़ा सा इसका एक राइटअप भेजिए तो आई विल एक्सप्लेन। मैं पहले आपसे समझना चाह रहा हूँ, आप देखिए मेरे को उसके बारे में पूरा पता नहीं है, स्पोर्ट्स मेडिसिन या स्पोर्ट्स के बारे में, मैं उस एरिया का हूँ ही नहीं, मेरे को एक जनरलाइज्ड आइडिया है। हाँ, मैं स्पोर्ट्स बोर्ड का चेयरमैन रहा हूँ तो कुछ चीजें मेरे को मालूम है। तो अगर आप मेरे को एक थोड़ा सा बैकग्राउंड भेजेंगे तो मैं वो पढ़ के और उसके बेसिस पे आप इस तरह से करिए, ये लॉन्ग टर्म चलेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। और कोई पूछना चाह रहा है? सर आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ बोलिए। आपने जैसे पैंथर का एग्जांपल दिया कि हम स्टडी एरिया डिफरेंट ले सकते हैं, अगर हमारा पैंथर पे ऑलरेडी बहुत काम हुआ है, लेकिन स्टिल इट इज अ वल्नरेबल स्पीशीज पैंथर जो है, तो अभी उसका नीड है कि उस पर और काम होना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी काम बहुत किया हुआ है उस पे, तो सर हमें फिर भी पैंथर पे इन अ न्यू स्टडी एरिया काम करना चाहिए ना, क्यों नहीं। देखो मैंने बीच में क्या कहा, गैप ऑफ रिसर्च आइडेंटिफाई। अभी तक जो काम हुआ है उसको पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, एकदम रिसर्च पे जाना जरूर नहीं है। टेक एटलीस्ट 5-6 months, रीड इट केयरफुली, और उसके बीच में ढूंढने की कोशिश करिए कि उन लोगों ने क्या काम नहीं किया है, क्या चीज को अवॉइड किया है। उससे आपको सीधे लिंक मिलेगी, अच्छा यहां पर ये जगह रह गई है जो लोगों ने नहीं देखी है। सो दैट विल बी ए कंप्लीटली न्यू फ्रंटियर जहां की आप अपनी रिसर्च को ले जा सकते हैं। समझ रहे हैं ना? बाकी ऐसे कुछ अंदाज नहीं है, पैंथर पर रिसर्च वो एक वेग वो हो जाएगा। तो आपको गैप ढूंढनी पड़ेगी कि यहाँ ये लोग चूक गए हैं, यहाँ या ये जो काम किया हुआ है इसको थोड़ा सा और चेंज किया जा सकता है, अगर मैं कुछ फैक्टर साथ में ले लूं जो उसको अफेक्ट करते हैं। इस तरह की चीजें आप लेके और एक डिजाइन कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी सर, थैंक यू। और कोई? जी सर, मुझे पूछना था, जैसे मैं टॉपिक लेना था। हेलो, हाँ जोर से बोलिए। हाँ जी सर, आवाज आ रही है आपके पास? हाँ सर मेरा टॉपिक मैं है जूलॉजी के अंदर जू प्लैंकटन ले रही हूँ।
तो उसमें मुझे ये पूछना था कि जैसे मैं पेपर रीड कर रही हूँ तो मतलब अभी रिसेंट के 10 ईयर की कर रही हूँ ऑन, या फिर जो मैंने जो एरिया चूज किया है उसके आसपास के एरिया के जो स्पीसीज है उनके बारे में स्टडी नहीं, करूँगी। देखो इसमें एक्चुअली हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए, एक तो एक उसकी ओल्डेस्ट रिसर्च क्या थी। जी जी सबसे पहले शुरुआत में लोगों ने क्या स्टडी किया है, ये बहुत जरूरी है बैकग्राउंड देना, ठीक है। और उसके बाद आजकल चूंकि अब इतना बहुत लंबा समय हो गया है, इसलिए क्या है कि अब ये तय हो गया है कि आज से 10 साल पीछे तक क्या स्टडी हुई है उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज एक्सेप्टेबल। ओके ओके सर, थैंक यू। और बोलिए, बट शुरू का बैकग्राउंड अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा। जैसे सपोज कई रिसर्च जो है जैसे 1903 में हुई होंगी या 1905 में हुई होंगी या 1856 में हुई होंगी, बट दे आर पब्लिश समवेयर और अवेलेबल है सब, आप उसमें देख सकते हैं। और सर मैं ये पूछ रहा था, हेलो। हाँ बोलिए हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे साइंस में अच्छा रिसर्च करने पर फंड मिलता है संस्थाओं से, CSR से, तो हिंदी लिटरेचर में अगर आप अच्छा रिसर्च करते हो, कोई अच्छा काम करते हो, तो ऐसी कौन सी संस्थाएं हैं जिनसे आपको इस प्रकार की सहायता मिल सकती है? हिंदी ग्रंथ अकादमी से मिल सकता है, और MP में माखनलाल चतुर्वेदी कोई अकादमी है उससे मिल सकता। आप देखिए ना, कई जगह आपको मिल जाएगी अकादमी, तो मिलेगा, पैसा मिलेगा। हमारे यहाँ साहित्य ग्रंथ अकादमी है राजस्थान में, बहुत बड़ा पैसा नहीं देते हैं बट देते हैं पैसा, 50,000 के अंदर अंदर मिलता है उसे, मिल जाएगा इनसे किसी से। आप कंप्यूटर चलाना आता है ना आपको? हैं? हाँ, तो बस उस पे आप गूगल पे ढूंढिए ना एजेंसी, इसको गूगल पे मिल जाएगा आपको सभी। नहीं वो तो ढूंढते ही है, लेकिन फिर भी अगर आपकी विशेषज्ञता है ना इसमें। देखिए मेरे ख्याल से हिंदी ग्रंथ अकादमी काफी पैसा देती है, साहित्य अकादमी देती है, क्योंकि ये अकादमी ही देगी पैसा, और तो कोई नहीं देगा आपको। जैसे सर अभी हाल ही में अभी एक लिटरेचर से संबंधित एक पुस्तक पब्लिकेशन करवाई थी जी, उसके बाद अपन हिंदी ग्रंथ अकादमी से उसको पब्लिश कराना था, क्या प्रोसेस? अभी एक बार तो दूसरे प्रकाशन करिए जी, कुछ स्टेप्स है क्या इसके? कुछ स्टेप्स है क्या इसके? जैसे एक कुछ सुन पा रहे हैं क्या सर? कोई वाईफाई की प्रॉब्लम है, थोड़ा कट रहा है। अच्छा, अब आ रही क्या आवाज? डाल दीजिए मेरी, हाँ ठीक है, ईमेल पर डाल जी डाल देंगे। अच्छा और बताएं, और कोई? धन्यवाद के रस्म अदा करें। पूछना है किसी को और? हेलो सर, एम आई ऑडिबल? हाँ बिल्कुल। सर हम अगर हिस्ट्री की कोई रिसर्च और प्रेजेंट या फ्यूचर की कोई रिसर्च को कंपैरेटिव स्टडी कुछ करें, ऐसा अगर कुछ नया करने की कोशिश करें तो सर कर सकते हैं ना हम ऐसा? हाँ क्यों नहीं कर सकते, किसने मनाही करी? हिस्ट्री के ट्रेंड्स अगर हम देख रहे हैं और हम अभी प्रेजेंट ट्रेंड और फ्यूचर ट्रेंड अगर कुछ सोचते हैं कि ऐसा फ्यूचर में किया जा सकता है, तो सर वी कैन डू दैट। बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते, कौन मना कर रहा भाई? सर बट वो एक वेग आइडिया है, सिर्फ एक आइडिया है सर, बिल्कुल पहुंचेंगे कैसे वो बहुत डिफिकल्ट है सर वो रास्ता। वो तो भैया आपको मैंने कहा ना, सोचना पड़ेगा सारा बैठ के कि कैसे करेंगे, बट बिल्कुल कर सकते हो। रिसर्च का मतलब यही है, मैं रिसर्च को ये मानता हूँ बिल्कुल वेग आइडिया है जिसको लोग हंसते हो कि क्या बात कर रहे हो, अगर उसको आप प्रूव कर सकते हो तो क्या हो सकता है। वही सर, इफ वी कैन प्रूव तो रिसर्च है। पहली बार मैंने इंटरनेशनल डायस पे फ्लोराइड की बात की थी कि नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है, तो पीपल लाफ्ड एट इट, कैन यू बिलीव इट? लेकिन उसी रिसर्च को
लंदन के टेलीग्राफ ने पूरे एक पेज पे छापा मेरे फोटो के साथ। हो गई ना वैलिड? लोग हंसते हैं, उससे क्या होता है? और उस डेटा को अब तक लोग मानते हैं। दैट इज द फर्स्ट पेपर पब्लिश्ड इन इंटरनेशनल जर्नल ऑन अ फ्लोराइड अफेक्टेड नर्वस सिस्टम। हंसने से क्या फर्क पड़ता है? आप अगर प्रूव कर सकते हो तो फिर यू शुड बी कॉन्फिडेंट। ठीक है, जी सर, थैंक यू सर। चलो अच्छा लगा मेरे को स्ट्रगल सबसे किया बात होगा करके। सर आपने। और आई होप यू आर सेटिस्फाइड whatever I spoke to you. यस सर, वेरी मच। ठीक है बेटा, ओके जी दिव्या, सर। थैंक यू। थैंक यू सर। अरे कोई बात नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक थैंक यू सर। थैंक यू सर। और आपको कोई क्वेश्चन हो आप ईमेल पे डाल देना, मैं आंसर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू। जी ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू।